السلام علیکم۔ کہانی اب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک خوبصورت سا ناول آپ کے لیے جس کا نام ہے روشن سویرا، رائٹر رافیہ عزیز۔ تو پھر سن لیجئے۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ 20 منٹ پہلے ہی دکان سے گھر لوٹا تھا۔ جیسے جیسے عید کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے بازاروں میں رونقیں بڑھنے لگی تھیں۔ عموماً وہ سحری کے بعد ہی گھر آتا تھا، لیکن آج سر درد کی تکلیف کے باعث وہ جلد لوٹ آیا۔ کمرے میں گرمی اور حبس کی وجہ سے وہ بستر لے کر چھت پر آ گیا۔ سرہانہ چارپائی پر رکھ کر لیٹتے اس نے گہرا سانس لیا۔ اندرون لاہور میں ہمیشہ کی طرح گہما گہمی کا سماں تھا۔ بازاروں اور چوراہوں پر خوب چہل پہل تھی۔ تنگ گلیوں، چھوٹے مکانوں اور ساتھ جڑی چھتوں کے درمیان ہی موجود ایک گھر میں وہ رہتا تھا۔ وہ جو ہر کسی سے بیگانہ، روٹھا روٹھا سا ہے، وہ جو عرش خلیل ہے۔ عرش کی نظریں آکاش پر مرکوز تھیں۔ سارا دن کھڑے رہ کر کمپیوٹر پر بل بنانے کے بعد رات کو جب وہ بستر پر لیٹتا تو کمر چٹک جاتی تھی۔ ارد گرد کی چھتوں پر اندھیرے کا راج تھا، لیکن فاصلے پر موجود بادشاہی مسجد پوری شان و شوکت کے ساتھ روشنیوں میں گھری کھڑی تھی۔ مسجد کے گنبد رات کی سیاہی میں بھی دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ رہے تھے۔ عرش نے دایاں بازو اٹھا کر سر کے نیچے رکھا۔ چائے کی طلب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ نیند کی وادیوں میں اترنے ہی والا تھا کہ نسوانی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اچھے سے جانتا تھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس کی ہے۔ بول تو وہ آہستہ ہی رہی تھی، لیکن چونکہ گھروں میں فاصلہ کم تھا تو عرش بآسانی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ عرش نے گردن اٹھا کر سامنے نعیم صاحب کی چھت پر نظر ڈالی۔ ان کی چھت کی دیواریں اونچی تھی۔ اس نے دوبارہ سر تکیے پر گرا دیا۔ اب نیند کس کمبخت کو آنی تھی۔ لیپ ٹاپ احتیاط سے اٹھاتی وہ چھت پر آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ چندا نیچے سگنل نہیں آ رہے، اس لیے میں اوپر آ گئی ہوں۔ اسکرین پر نظر آتی 4 سالہ بچی کو پیار سے کہتے اس نے ہاتھ اٹھا کر سر سے ڈھلکتا دوپٹہ درست کیا۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ سویرا نعیم، جس کی معصومیت اور سادہ طبیعت سب کا دل موہ لیتی تھی۔ وہ نعیم اور سدرا کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں اور باپ کے ساتھ وہ دادی کی بھی لاڈلی تھی۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھی۔ بچی کے پیچھے ابھرتے عکس کو دیکھ کر وہ بچی سے مخاطب ہوئی۔ چندا، آپ ماما کے پاس جائیں، اب آپ ہی کی باری ہے۔ وہ بچی فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ سویرا عائشہ کی جانب متوجہ ہوئی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا، جس کا جواب دیتے سویرا نے ایک نظر ارد گرد گھمائی۔ رات کے اس پہر وہ چھت پر اکیلی تھی۔ سویرا امریکہ میں مقیم اپنے خالہ زاد کے بچوں کو آن لائن قرآن پڑھاتی تھی۔ عائشہ، کیا بات ہے؟ آپ مجھے کچھ اداس لگ رہی ہیں، اس نے استفسار کیا۔ نہیں خالہ، وہ اپنا قرآن کھولنے لگی۔ قرآن بند کر دیں، پہلے ہم اداسی کا حل نکال لیں گے، اس کے بعد آج کا سبق شروع کریں گے۔ چلو شاباش، اب جلدی سے خالہ کو بتاؤ کہ کیا پریشانی ہے۔ خالہ، اس نے بات کرنے کا ارادہ کیا، لاریب میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم بہت عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے، لیکن اب لاریب مجھ سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتی اور اس نے نئے دوست بھی بنا لیے ہیں۔ خالہ، ہم تو بیسٹ فرینڈ تھے۔ عائشہ کے لہجے میں اداسی اور نمی گھلنے لگی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں دینا کہ وہ آپ کا سکون اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ چرا لے۔ تبدیلی کائنات کی فطرت ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ لاریب آپ سے دور ہوئی تو اسے دور جانے دو، کیا پتہ اللہ پاک کی اسی میں بہتری ہو۔ بچے، کسی بھی رشتے کو زبردستی نہیں روکنا چاہیے، زبردستی کا رشتہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر اب لاریب آپ کے پاس آئے تو جیسے وہ آپ کے ساتھ رہے آپ بھی ویسے ہی رہنا۔ اگر وہ نہ بھی آئے تب بھی آپ نے کوئی بات دل پر نہیں لینی۔ اداس ہونے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھ جاؤ، ہم اکیلے تھوڑی ہیں، ہمارے پاس تو سب سے بہترین دوست موجود ہے۔ جلدی سے بتاؤ کون ہے وہ دوست؟ اللہ تعالیٰ، رسان سے کہتی ہو مسکرا دی۔ جب اللہ کوئی چیز ہم سے دور کرتا ہے تو اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے، اگلی بار وہ ہمیں اس چیز سے بہتر چیز انعام کر دیتا ہے۔ بس ہمیں صبر اور دعا سے کام لینا چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اللہ پاک نے مجھے اتنی اچھی دوست سے نوازا ہے، میں بلا وجہ ہی اداس ہو رہی تھی۔ عائشہ کی بات پر سویرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ؟ خالہ، آپ میری بہت اچھی دوست ہیں۔ سویرا ہنس دی۔ قریب ہی مسجد میں تہجد کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ رات کا تیسرا پہر یعنی خدا سے ملاقات کا پہر شروع ہو چکا تھا۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ فضا میں سکون سرایت کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ مولوی صاحب کے خاموش ہوتے ہی چاروں سو سناٹا چھا گیا۔ کتنی دیر وہ خلا میں موجود کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا رہا۔ ہم اکیلے تھوڑی ہیں، ہمارے پاس تو سب سے بہترین دوست موجود ہیں۔ نرم آواز سماعت میں گونجنے لگی۔
अम्मा एक तेरा ही आसरा है, मुझे अकेला ना छोड़। माँ का लाडला माँ से गिड़गिड़ा कर इल्तिजा कर रहा था। पुत्र बंदों में आसरे नहीं ढूंढते, बंदे तो आनी जानी शय हैं। सहारा इसे बना जो हमेशा रहेगा, जो सबका वली सबका मददगार है। अम्मा तेरी आगोश के बिना नींद ही नहीं आती, तुझे देखे बिना चैन ही नहीं मिलता। अम्मा अब कोई दम पड़कर भी नहीं फूंकता, कोई नहीं कहता खैर नाल जा पुत्र रब दे हवाले। अम्मा तेरा लाडला थक गया है। एक आंसू चुपके से आंख से लुढ़क कर दाढ़ी में जज्ब हुआ। अर्श भाई सहरी कर लें। यास्मीन जिस तेजी से आई थी उसी तेजी से पैगाम देती वापस चली गई। वो गीली सांस अंदर खींचता उठ बैठा, इस बात से अनजान कि माँ ने तो आखिरी हिचकी लेते इसे बेहतरीन ज़ात के हवाले कर दिया था। पुत्र रब दे हवाले। अम्मी यास्मीन रात को किताब देकर गई थी। अलमारी में मौजूद हर किताब को देखते इसने माँ से इस्तफसार किया। नहीं बच्चे। माँ का जवाब सुनकर सवेरा ने गुस्से से अलमारी बंद की। ये लड़की मुझसे बहुत पिटेगी। घर से निकलकर इसने सामने वाले घर के दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए थी कि अंदर से आती आवाज़ पर ठहर गई। वो तैयार सा मोटरसाइकिल पर से धूल साफ कर रहा था जब आफरीन की आवाज़ कानों से टकराई। ओ मियाँ, तुम्हें कौन सी ज़ुबान समझ आती है? किचन की चौखट पर खड़ी वो कमर पर हाथ रखे अर्श को घूर रही थी। जो ज़ुबान आपको बोलनी नहीं आती, वो लापरवाही से कहता सहन में लगे नलके से हाथ धोने लगा। देख रहे हैं अपने भतीजे की तेवर? अर्श अपने काम में लगा रहा। पीछे आफरीन इसकी शान में कसीदे कहना शुरू कर चुकी थी। आईने में देखते अर्श ने अपने बाल दुरुस्त किए, गंदुमी रंगत, हल्की शेव, दराज कामत इसे पुरकशिश बनाते थे। वो मोटरसाइकिल घसीटता दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा था जब रफ़ीक की आवाज़ पर कदम जम गए। जिस घर में रह रहे हो तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी उठाने में कौन सी आफत आ रही है? वो पलटा। जिम्मेदारी से ना मैंने पहले जान छोड़ाई ना अब। अभी एक हफ्ता पहले ही सारा राशन लेकर आया हूँ। बस इतना कह रहा हूँ, इस महीने बिजली का बिल अदील जमा करवा दे, मेरे पास गुंजाइश नहीं है। कल फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख थी, पैसे इसमें लग गए। पहले भी तो सब देखता रहा हूँ, बस इस महीने गुजारा कर लें। 2 दिन की मुसलसल चक चक से इसका दिमाग घूम चुका था। अब ये हम पर एहसान जिताएगा कि ये घर का खर्चा उठाता है। आफरीन तन फन करती इसके सर पर आ खड़ी हुई। लाट साहब कोई एहसान नहीं करते, तुम खर्चा उठाकर रहने के लिए छत दी है तुम्हें। 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिल जाती है, सब्र शुक्र करो। अर्श ने बहुत मुश्किल से खुद को कुछ सख्त बोलने से रोका था। इज्जत? कौन सी इज्जत? साल में चंद दिन ही से ताज़ा खाना मिलता था और घर वो जिसका दरवाज़ा बंद हो जाने पर पूरी रात इसे बाहर शेड में खड़े हो रहकर गुजारनी पड़ती थी। उसने पीछे तख्त पर अखबार पढ़ते अपने चचा को देखा। चलो आफरीन तो गैर थी, वो तो सगा चचा था, इससे तो खून का रिश्ता था, वही कुछ नरमी कर लेता। लेकिन आजकल तो सगे सौतेलों से भी ज़्यादा सख्त दिल हैं। इसने झटके से पलटते दरवाज़ा खोला। वो जो दस्तक के लिए हाथ उठाए खड़ी थी अचानक दरवाज़ा खोलने पर हड़बड़ाकर पीछे हुई। अर्श ने इसे देखा। सियाह बाए और नकाब में सिर्फ इसकी आंखें नजर आ रही थी। चंद सेकंड्स के लिए दोनों की नजरें मिली, फिर वो फौरन पीछे हट गया। इसके हटते ही सवेरा जल्दी से अंदर चली गई। इम्तहानात खत्म होते ही सवेरा को यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हो गई थी। इसका बीए मुकम्मल हो चुका था। आज इसने ट्यूशन वाले बच्चों को भी छुट्टी दे रखी थी। असर की नमाज पढ़कर वो सहन में आ गई जहां दादी पंखे के सामने बैठी नमाज के बाद की तस्बीहात पढ़ रही थी। आसमान पर बादलों का बसेरा था। हो गई मेरी बच्ची की नींद पूरी। तस्बीह एक जानिब रख कर वो सवेरा की जानिब मुतवज्जा हुई। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती दरवाजे पर दस्तक हुई। यास्मीन होगी, सुबह से 3 चक्कर लगा चुकी है। सवेरा ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने यास्मीन ही थी। शुक्र है तुम उठ गई, मुझे तो लग रहा था नशा करके सोई हो। सवेरा ने दरवाज़ा बंद करते इसके कंधे पर थप्पड़ रसीद किया। अस्तगफिरुल्लाह। दादी ने कानों का हाथ लगाए। ओह दादी, आप यहाँ बैठी हैं? यास्मीन दांत निकालती उनके साथ चारपाई पर बैठ गई। पता नहीं आजकल के नौजवानों ने शर्म व हया कहाँ बेच खाई है। बीच दरवाजे पर खड़ी होकर लड़कियां नशे का नाम ले रही हैं। ओह दादी, नाम ही तो लिया है, मैंने कौन सा नशा करना शुरू हो गई हूँ। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यास्मीन कहका लगाकर हंसने लगी। सवेरा हंसी जब्त करती बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गई जहाँ सिदरा बिरयानी का सामान निकाल रही थी। अम्मी आप जाकर आराम करें, खाना मैं बना देती हूँ। इसने सिदरा को बाहर भेजते कमर पर फैले गीले बाल जोड़े की शक्ल में बांधे और काम में लग गई। यास्मीन इसके पास शेल्फ पर चढ़कर बैठ गई। 1 घंटे तक बिरयानी तैयार हो गई थी। दम पर रखकर वो बावर्ची खाने में मौजूद मूढ़े पर बैठ गई। सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे अर्श भाई की बहुत फिक्र है। अम्मा तो सारे लिहाज भूल चुकी हैं। बातों के दौरान यास्मीन ने अर्श का जिक्र छेड़ दिया। वो यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? एक अरसे से दिल में दबी बात लबों पर आ गई।
इतनी महंगाई के दौर में कहाँ जाएंगे? 20,000 तनख्वाह में मकान का किराया, राशन, बिजली, पानी का बिल, ये सब कैसे पूरा करें? सवेरा ने कुछ कहना चाहा, फिर खामोशी रही। मुझे इतना तरस आता है जब हम सब कमरे में एसी में सोते हैं और वो छत पर जाकर सिर्फ चंद घंटों की नींद लेते हैं। सवेरा चूल्हा बंद करके बर्तन निकालने लगी। अल्लाह पाक आसानियाँ करें। इसने दिल से दुआ दी। यास्मीन ने सर पर हाथ मारा। जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। वो दोनों बावर्ची खाने से निकलकर बरामदे में रखे मेज़ पर बर्तन लगाने लगी। रोज़ा खुलने में कुछ ही देर रह गई थी। कल अर्श भाई की सालगिरह है। तोहफा तो मैं ले चुकी हूँ, बस तुम अच्छी सी कुछ बातें और दुआएं लिख देना, ये काम मुझसे नहीं होता। फ्रिज से शरबत निकालते सवेरा के हाथ सुस्त हुए। मैं कैसे लिख सकती हूँ? सवेरा ने साफ इनकार करते मेज़ पर जाकर जग रखा इन खूबसूरत हाथों से। यास्मीन ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं कुछ नहीं लिख रही। इसने फौरन अपने हाथ छुड़ाए। सवेरा, इल्तजा की गई। हरगिज़ नहीं। इल्तजा रद्द कर दी गई। यास्मीन मुंह लटकाकर जाने के लिए पलट गई। रुको। वो झटके से पलटी। मुझे पता था तो मेरी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुस्कुराती इसके पास आई। खुशफहमी का लेवल ज़रा कम करो। बिरयानी निकाल रही हूँ, लेती जाओ। सवेरा की बात पर यास्मीन मुंह बनाती इसके पीछे किचन की जानी बढ़ गई। घड़ी की सुइयां जो ही 12 से जा मिली, अर्श के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो टी शर्ट और ट्राउज़र पहने बेड पर किताबों में सर दिए बैठा था। कल इसके एमए का आखिरी इम्तहान था। दिन रात की गई अनथक मेहनत से आखिरकार इसकी तालीम मुकम्मल होने को थी। इसने इंटरमीडिएट कॉलेज से किया था और इसके बाद की तालीम प्राइवेट हासिल की थी। किताब एक तरफ रखते इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने यास्मीन खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम अर्श भाई, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। वैसे पता तो मुझे पहले भी नहीं चलता था। सच बताऊं, बड़ी तंग हूं मैं अपनी नींद से, जो मुझे दुनिया से पूरी तरह बेगाना कर देती है। वो इसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर ट्रे थामे कमरे में आ गई। हाय अल्लाह, इतनी किताबें कैसे पढ़ लेते हैं इतना? किताबें एक तरफ रखने लगी। इधर आपका ये हाल है, उधर सवेरा किताबों में सर दिए रहती थी। वो तो शुक्र है इसका बीए मुकम्मल हो गया। अर्श खामोश सा पीछे खड़ा रहा। आपकी तबीयत ठीक है? इतने खामोश क्यों हैं? यास्मीन की आवाज़ में फिक्रमंदी छा गई। तुम्हारी चलती ज़ुबान के आगे कोई कैसे बोलने की गुस्ताखी कर सकता है? अर्श ने आगे बढ़कर ट्रे से चाय का मग उठाया। मैं कहाँ इतना बोलती हूँ? इसके मुंह के ज़ाविये बिगड़े। जी बिल्कुल, आप कहाँ बोलती हैं। खैर, इतनी नवाजिशों की वजह जान सकता हूँ? उसने ट्रे में रखे लवाजमात की जानिब इशारा किया। मुझे पता है, आपने रात को खाना नहीं खाया, मैं सो गई थी, इसीलिए आपके आने का पता ही नहीं चला। वो तो शुक्र है 12 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी। बोलते बोलते इसने सर पर हाथ मारा। बातों के चक्कर में अहम काम तो भूल ही गई। जल्दी से बाहर गई और हाथों में तोहफा लिए वापस आई। सालगिरह मुबारक अर्श भाई। अर्श ने चौंक कर इसे देखा। तुम्हें याद था? लो भला, मैं पहले कभी भूल ली हूँ? जो अब भूल जाती। आप तो मेरे चहीते भाई हैं। अर्श ने मुस्कुराते तोहफा थाम लिया। हमेशा खुश रहो। इसके सर पर हाथ रखकर दुआ देते अर्श की आवाज़ आबदीदा हो गई। एक यास्मीन ही तो इसका ख्याल रखती थी। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, सहरी में उठना भी है। आप जल्दी से बिरयानी खा लें, ख़ास सवेरा ने आपके लिए भेजी है। अर्श ने झटके से यास्मीन को देखा। और तुम सब? बात मुकम्मल करता इससे पहले यास्मीन बोल उठी। हम सब की अलग थी। इसे अम्मा का अच्छे से पता है, इसलिए इसने आपके लिए अलग प्लेट बनाई थी। चची को तो नहीं बताया? नहीं, अम्मा को तो मैंने कहा था ही मेरी है। यास्मीन की बात पर एक बार फिर मुस्कुरा दिया। सही, फपक उठनी हो। बेड पर बैठता ट्रे आगे करने लगा। कार्ड खोलकर ज़रूर पढ़िएगा, बड़ी इल्तिजाओं से लिखवाया मैंने। मगर मैंने नहीं पढ़ा। आप सुबह बता दीजिएगा कि क्या लिखा था। किससे लिखवाया है? अर्श ने चमचा भरकर मुंह की जानिब ले जाते इस्तफसार किया। सवेरा से। हाथ हवा में ही ठहर गया। बोलकर चली गई, लेकिन अर्श जहाँ था वहीं थम गया था। इसने उठकर दरवाज़ा बंद किया। तोहफा उठाकर बेड पर आ गया। प्लेट एक तरफ करते इसने डब्बा खोला। सबसे ऊपर सफ़ेद लिफाफा था जिस पर सालगिरह मुबारक लिखा हुआ था। इसके साथ मैरून रंग की ड्रेस शर्ट मौजूद थी। इसने शर्ट देखकर एक तरफ रखी, फिर लिफाफा उठाकर इसमें से तयशुदा कागज़ निकालकर खोलने लगा। नीली स्याही से फैले अल्फाज नज़रों के सामने झिलमिल करने लगे। सालगिरह मुबारक। आपके इस ख़ास दिन पर मैं आपको दुआओं का रोशनियों भरा चिराग थमाती हूँ कि जब आपको लगे आप तन्हा हैं, आपकी ज़िंदगी अंधेरों में घिरती चली जा रही है, तब ये चिराग आपकी राह को रोशन कर दे, तन्हाई में आपका साथी और अंधेरे में नूर बन जाए। आपके इस ख़ास दिन पर मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आने वाला हर दिन पहले से बेहतर और ख़ूबसूरत होगा। ज़िंदगी गर्दिश का नाम है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई भी आजमाइश बर्दाश्त से बढ़कर नहीं होती।
आजमाइश को सब्र की भट्टी में जलाकर राख कर देने से इनाम वजूद में आते हैं, और रब्बे कायनात कभी भी सिला देने से इनकार नहीं करते। वो किए गए हर अमल का सिला ज़रूर देते हैं। आपसे जो चीज़ ले ली गई है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपको ज़रूर इसके बदले कुछ ऐसा अता कर दिया जाएगा जो आपका मरहम बन जाएगा। हर दर्द से पहले इसका मरहम तैयार कर दिया जाता है, बस कोई इसे जल्द हासिल कर लेता है तो कोई ताख़ीर से, लेकिन मरहम मिलता ज़रूर है। अर्श ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। वो अच्छे से जानता था सवेरा ने किस तकलीफ़ का जिक्र किया था। माँ का भरी दुनिया में तन्हा छोड़ जाने का। बाप तो बचपन में ही छोड़ गया था, माँ तो बिछड़कर भी नहीं बिछड़ी थी। इसने आंखें खोली। आखिर में बस इतना कहूँगी, आपको ज़िंदगी मुबारक। अर्श न जाने कितनी देर लफ्ज़ों को पढ़ता रहा। नीली स्याही से फैले अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो उम्मीद थे। इसे लग रहा था वो जो हार गया है। सवेरा ने इसे एक नई उम्मीद दिला दी कि ज़िंदगी के हकीकी दिन तो अभी आने हैं, सब्र का अजर तो भी मिलना है। इसने कागज़ को एहतियात से अपने वॉलेट में रख लिया। सुबह से इसके सर में शदीद दर्द था। आजकल इसे बुखार, सर दर्द की शिकायत रहने लगी थी। बमुश्किल मगरिब की नमाज़ पढ़कर इसने सर दर्द की दवा ली और 2 घंटों के लिए सो गई। सवेरा, यास्मीन सीधा ऊपर इसके कमरे में आ गई थी। उठ जाओ सवेरा, वो इसके चेहरे से चादर हटाते हुए बोली। क्या मुसीबत है? शदीद बेजार हुई थी। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। यास्मीन की बात सुनते भड़क कर उठ बैठी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? ये कौन सा वक्त है बाजार जाने का? और दूसरा, आज बहुत रश होगा, तुम्हें पता है मुझे रात को बाजार जाना बिल्कुल पसंद नहीं। बिखरे हुए बालों को समेटते इसने हतमी अंदाज में अपना फैसला सुनाया। बस 2 दुकानों में जाना है, खाला भी साथ आ रही हैं, तुम भी उठ जाओ ना। उन्होंने कहा है लाजमी तुम्हें साथ लेकर आओ। वो लाजाजत भरा अंदाज अपनाए हुए थी। अम्मी भी ना। कुछ देर बाद तीनों तंग गलियों से होती बाजार की जानी बढ़ रही थी। घर से बाजार तक का रास्ता 5 मिनट का ही था। गलियों चौराहों में जैसे लोगों का सैलाब उमड़ आया था। तेज रोशनी में स्टॉल जगमगा रहे थे। इतने हजूम में सवेरा का दिल घबराने लगा। भूरे अबाए और नकाब में इसकी आंखें उतरी हुई मालूम हो रही थीं। अम्मी जल्दी करें। यास्मीन और सिदरा को चूड़ियों के स्टॉल पर रुकता देखकर वो झुंझला कर बोली, सूट के साथ की चूड़ियां देख लो, तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। सिदरा ने चादर दुरुस्त करते से आगे किया तो इनकार करती पीछे हट गई। जो हैं वो पहन लूँगी, आप बस घर चलें। हाँ बस चल रहे हैं, मैं जूता तो ले लूँ। दुकानदार को पैसे पकड़ा कर सामान पकड़ती यास्मीन आगे बढ़ गई तो वो भी इसके पीछे चल दी। शीशे का दरवाज़ा धकेलती वो तीनों जूतों की एक शानदार दुकान में दाखिल हुई। एसी की ठंडी हवा महसूस करते ही सवेरा ने पुरसकून सांस लिया। दुकान की चमक दमक देखने लायक थी। दुकान में काफ़ी रश था। यास्मीन और सिदरा आगे बढ़कर जूते देखने लगी, जबकि सवेरा कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वो जो एक कस्टमर का बिल बना रहा था, जो ही इसने सर उठाया नज़र पास ही कुर्सी पर बैठी नकाब वाली लड़की पर गई। अर्श को गुमान हुआ कि वो सवेरा है, लेकिन सोच को झटक कर काम में मशगूल हो गया। सवेरा शीशे के पीछे मौजूद जूतों को गौर से देख रही थी। तभी इसे लाल रंग की हील वाली जूती पसंद आ गई। सुने भाई, ये वाली दिखाइएगा। सवेरा ने पास खड़े दुकानदार को इशारे से जूते का बताया। अर्श ने सवेरा की आवाज़ पर सर उठाकर इसे देखा। गुमान नहीं, हकीकत थी। इतने लोगों की आवाज़ों में अर्श ने सवेरा की आवाज़ को पहचान लिया था। काबिल सत्ताइश बात थी। दुकानदार ने सवेरा के पाँव के साइज़ के जूते मंगवा कर इसके सामने रखे। अर्श इनकी जानिब भी मुतवज्जा था। सवेरा ने दायां पाँव लाल रंग के हील वाले जूते में डाला तो ऐसा लगा बना ही इसके लिए था। स्ट्रैप बंद करने के लिए दुकानदार ने हाथ बढ़ाया ही था कि वो फ़ौरन बोल उठी, मैं खुद कर लूँगी। वो पीछे हो गया तो सवेरा ने झुक कर स्ट्रैप बंद किए। दोनों जूते पहनकर चलती हुई शीशे के सामने आकर पाँव का अक्स देखने लगी। जूते इसके पाँव में जच रहे थे। अर्श नज़रें मोड़कर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। यास्मीन के साथ वो बिल अदा करने आई तो अर्श को देखकर चौंक गई। इसे नहीं इल्म था कि अर्श यहाँ काम करता है। आने से पहले बता देती, इसने सामान यास्मीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सवेरा पर्स में झुकी पैसे निकाल रही थी। बस अचानक ही आना हो गया। अर्श ने नज़रें झुकाए सवेरा से पैसे थाम कर रसीद इसके हवाले की। खाला पानी मंगवाऊँ? वो सिदरा की जानी मुतवज्जा था। नहीं बच्चे, बस अब घर चलेंगे, तुम भी जल्दी आ जाना। सिदरा की बात पर इसने मुस्कुराते सर हिलाया। कल ईद थी, इन्हें आज देर तक रुक कर सारी क्लोजिंग करनी थी। तीनों दुकान से जो ही बाहर निकली, एक मोटरसाइकिल सवार रश में जगह बनाता तेजी से निकला। जोरदार चीख सवेरा के मुंह में ही दम तोड़ गई। हाय मेरी बच्ची! सिदरा ने फौरन सवेरा को पकड़ा। मोटरसाइकिल के दोनों टायर इसका दायां पांव जख्मी कर चुके थे। अंधा मनहूस मारा। सिदरा मोटरसाइकिल सवार को कोसने लगी। सवेरा के अंगूठे का नाखून उखड़ चुका था और इसमें से तेजी से खून निकलने लगा था।
सिदरा घबरा गई। यास्मीन ने फौरन इसके हाथ से सामान पकड़ा। इर्द गिर्द लोगों का इतना हजूम था, कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। मैं भाई को बुला कर लाती हूँ। यास्मीन बौखलाई उसी दुकान की जानी पलटी। सवेरा ने इसे रोकना चाहा, लेकिन वो तेजी से आगे बढ़ गई थी। सिदरा सवेरा को सहारा दिए खड़ी थी। घर से ही न डालकर चली थी, देख लो अब अंजाम। सिदरा उल्टा इसी पर चढ़ दौड़ी। अम्मी, खुदा के लिए डांटे तो मत, तुमने ही ना की थी ना। सवेरा वैसी ही भरी पड़ी थी। सिदरा की बात पर इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। यास्मीन के साथ तेजी से आता अर्श उसकी नम आंखें देख चुका था। क्या हुआ? परेशान हाली में उनकी जानिब बढ़ा। अर्श ने सवेरा के पाँव की जानिब देखा जो खून से लाल हो रहा था। ये तो बहुत ज़्यादा लग गई, आप मेरे साथ आएँ, साथ ही गली में क्लिनिक है। सिदरा को साथ चलने का कहा। आप चल लेंगी? बस थोड़ा सा ही आगे है। अब की बार पलट कर सवेरा से इस्तफसार किया। इसने इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर सवेरा का पाँव साफ करके इस पर मरहम लगा रही थी। सिदरा और यास्मीन बाहर बैठे थे, जबकि अर्श दीवार के साथ कमर लगाए सीने पर बाजू बांधे डॉक्टर की कार्रवाई देख रहा था। मेरी नज़र लग गई होगी, इसने पट्टी में कैद पाँव को देखते हुए सोचा। पट्टी करके डॉक्टर सीधी हुई और दवाई वाली पर्ची अर्श की जानिब बढ़ाई। सवेरा का पाँव सुन्न हो रहा था। वो कुर्सी का सहारा लिए खड़ी तो हो गई थी, लेकिन कदम उठाने में मुश्किल हो रही थी। आप बैठे, मैं खाला को भेजता हूँ। सिदरा को अंदर भेज कर इसने इनके लिए रिक्शा मंगवाया और सामान यास्मीन को पकड़ाते वो इसे कुछ समझाने लगा। घर आती दादी के कमरे में लेट गई। सर दर्द एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर चुका था। सुबह के तकरीबन 4 बजे वो घर लौटा था। थकन से आंखें बंद हो रही थी। मोटरसाइकिल से उतरकर इसने 4 दफ़ा दरवाज़ा खटखटाया। घर की चाबी आफरीन ने इसे रखने ही नहीं दी थी। 10 बार वो चाबी बनवा चुका था, हर बार चाबी गायब हो जाती थी। 5वीं बार दस्तक देते इसने ज़ोर से दरवाजे पर ठोकर मारी। क्या मुसीबत है? गुस्से और थकन से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। सवेरा जो नमाज पढ़कर बाहर बरामदे में आकर बैठी थी, मुसलसल दस्तक सुनकर आहिस्ता से उठकर कमरे में गई और मोबाइल उठाकर यास्मीन को फ़ोन मिलाया। तीसरी घंटी पर फ़ोन हानिया ने उठाया था। कौन? गनोदगी में इस्तफसार किया गया। सवेरा बात कर रही हूँ, फ़ौरन उठकर दरवाज़ा खोल लो। क्यों? फजूल सवाल मत करो, जल्दी उठो। वो नींद में झूलती दरवाज़ा खोलने आई तो सामने अर्श जो गुस्से से भरा खड़ा था। हानिया को बिना चादर के देखकर नज़रें फेरता मोटरसाइकिल घर के अंदर करता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। हानिया मुस्कुराती इसके पीछे कमरे में आई। वह दरश्तगी से पलटा। क्या तकलीफ़ है? निकलो यहाँ से। इसे शदीद नफरत थी हानिया से, जो अपना औरत होने का लिहाज भी नहीं करती थी। आज ईद है और मैं आपके दीद की प्यासी हूँ। वो कमीनगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, भड़कने की ज़रूरत नहीं है। खफगी से मुंह बनाती पलट गई। अर्श ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया। इसे नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो अलमारी से सफ़ेद कुर्ता कमीज़ निकालता बाथरूम में घुस गया। सफ़ेद कलियों वाला फ़राक पहने वो आईने के सामने आकर बाल बनाने लगी। नईम साहब मस्जिद से लौटने ही वाले थे, वो भी नमाज़ पढ़ चुकी थी। सबसे पहले इसने दादी को मुबारकबाद दी और इनसे खूब दुआएं लेने के बाद आहिस्ता से चलती किचन में आ गई, जहाँ सिदरा फ्रिज से खीर निकाल रही थी। ईद मुबारक अम्मी। माँ के गले लग गई। खैर मुबारक चंदा, तुम्हें भी ईद मुबारक। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। सर पर प्यार करते दुआ दी। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो। सफ़ेद रंग में वो जैसे निखर सी गई थी। वो सब बरामदे में बैठे गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। टेलीविज़न पर ईद का प्रोग्राम चल रहा था। तभी बरामदे पर दस्तक हुई। सिदरा ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने अर्श सफ़ेद कुर्ते शलवार में मलबूस, हाथ में केक लिए खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम खाला, ईद मुबारक। इसने सिदरा के सामने सर झुकाया। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, खैर मुबारक। मुझे पता था सबसे पहले मेरा बेटा ही ईद मिलने आएगा। वो दोनों साथ अंदर आए। सवेरा सफ़ेद आंचल से चेहरा ढांप चुकी थी। 7 साल पहले नईम साहब मोहल्ले में आए थे और इन 7 सालों में अपने अखलाक और सादा तबीयत से वो सबके दिलों में अपना मुकाम बना चुके थे। अर्श को सिदरा और नईम दोनों ने बहुत प्यार दिया था। सलमा जो कि अर्श की वालदा थी, इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे सिदरा के साथ, इसी वजह से वो इनकी बहुत इज्जत करता था। अर्श को जगह जगह पैदल जाते देखकर नईम साहब ने इसे किस्तों पर मोटरसाइकिल ख़रीद कर दी थी, जो 1 साल पहले मुकम्मल अर्श की मलकियत बन चुकी थी। दादी से दुआएं लेने के बाद वो नईम साहब से गले मिल रहा था जब गैर इरादी तौर पर नज़र सवेरा की पुश्त से टकराई। वो कमरे में जा रही थी, सफ़ेद चूड़ीदार पजामा और कलियों वाला फ़राक पहनने। सर सफ़ेद आंचल से ढका हुआ था। बैठो बच्चे। नईम साहब के सामने कुर्सी पर बैठ गया, जबकि सिदरा इसके लिए खीर लेने चली गई। दोपहर को नईम साहब के किसी दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया था, तो वह इनकी तरफ चले गए, जबकि शाम होते ही उनकी तरफ मेहमान आ गए। सिदरा ने सवेरा को आवाज़ देकर किचन में बुलाया।
तुम्हारे अब्बा को चीनी का कहा था, लाई ही नहीं। ऐसा करो, सामने अदील या अर्श होगा, इसे कहो दुकान से चीनी ला दें। वो कमरे में आकर यास्मीन को फ़ोन करने लगी, लेकिन यास्मीन फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो कुछ सोचती चादर लेकर बाहर निकल आई। सामने दरवाज़ा खुला हुआ था, वो घर में आ गई। आफरीन खाला, इसने आवाज़ दी। बाएं जानिब से हानिया की आवाज़ आ रही थी। समझते क्या हो तुम अपने आप को? ये जो तुम्हारी अक्कड़ है ना, 2 मिनटों में निकाल दूंगी। सवेरा की आंखें हैरत से फैल गईं। हानिया बीबी, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। तुम जैसों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। तुम्हारा लिहाज सिर्फ चचा की वजह से कर रहा हूँ। अपनी हद में रहो। अर्श की आंखों से लग रहा था जैसे वो कुछ देर पहले ही नींद से जागा है। तुम क्या मुझसे मुंह मोड़ोगे? तुम तो अपने आप को भी देखने लायक नहीं हो। दूसरों की छत तले रहते हो, सुबह से शाम तक बाहर धक्के खाते फिरते हो। कदर करने वाला तुम्हारा कोई है नहीं। तुम्हें और तुम्हारी माँ को हमने सहारा दिया था। हानिया सारे लिहाज भुला इसका ज़ब्त आजमा रही थी। अर्श ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं, आंखें सुर्ख हो रही थी। हानिया, सवेरा की तेज़ आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। अर्श तेज़ी से बाहर निकल गया, इसका ज़ब्त जवाब दे रहा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? किस अंदाज में तुम अर्श से बात कर रही थी? उमर का तो तुमने लिहाज रखा ही नहीं, अपने रिश्ते का ही रख लेती। शदीद ताज्जुब से इसे देखती बोल रही थी। तुम्हें इस मसले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। हानिया ने बदतमीज़ी से कहा। इतनी ऊंची उड़ान मत भरो कि तुम्हारा सांस बंद हो जाए और तुम ज़मीन पर मुंह के बल गिर जाओ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। बात मुकम्मल करके वो पलट गई। घर आकर पैसे लिए और दुकान की जानिब बढ़ गई। गली के नुक्कड़ में ही परचून की दुकान थी। अर्श दुकान की सीढ़ी पर बैठा शदीद इज़्तिराबी कैफियत में था। सवेरा को सामने से आता देखकर इसे ख्याल आया यकीनन कुछ कहने ही आई होगी। फ़ौरन से उठकर इसके पास आया। मुझे बता दें क्या मंगवाना है। सवेरा ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा, बिना कुछ कहे पैसे और लिस्ट इसके हाथ में थमा दी। आप जाएं, मैं लेकर आता हूँ। वो पलट गई। अर्श की नज़रों ने तब तक इसका पीछा किया जब तक वो घर में दाखिल नहीं होगी। सवेरा का पाँव पहले से बहुत बेहतर था, लेकिन सर का दर्द एक लम्हे से चैन नहीं लेने दे रहा था। दर्द के बाइस वो सोने से कासिर थे। आखिर थक कर वो उठ बैठी। फजर की अजान हुए आधा घंटा गुजर चुका था। वज़ू करके इसने नमाज अदा की और ताज़ा हवा लेने छत पर आ गई। आज ईद का तीसरा दिन भी खैरियत से गुजर चुका था। वो घर में ही रही थी। रिश्तेदार कोई इतने करीबी थे नहीं कि वो कहीं जाती। नईम साहब अकलौती औलाद थे और सिदरा का एक भाई था जो कि इस्लामाबाद में मुकीम था और एक बहन अमेरिका में। इसलिए ईद भी इसने यास्मीन के साथ हंसी मजाक करते गुजारी थी। वो अलग बात थी, हानिया की बातें इसके दिमाग में घूमती रही थी। कल सबका बादशाही मस्जिद जाने का इरादा था। सवेरा कदम कदम चलती मुंडेर के पास आ गई। दूर बादशाही मस्जिद के रोशन गुंबद नजर आ रहे थे। बिखरी जुल्फों की तरह फैली रात अब सिमट रही थी। पहली तारीखों का चांद मंजर से गायब हो रहा था। मिटते सितारे आकाश में नूर बखेर रहे थे। ठंडी सुकून बख्श हवा पैगाम दे रही थी कि रहमत आलम से झोलियां भर लो। वो बादशाही मस्जिद के ओट से निकलता सूरज देखने लगी। पीछे फासले पर अर्श भी इसी मंजर के सहर में था। अंदरूने लाहौर जाग उठा था। बादशाही मस्जिद के गुंबद और मीनारों से परिंदों का एक काफिला पर फैलाता फलक की जानी बढ़ा और एक मदार में घूमने लगा। ये मंजर देखती आंखें चमक रही थीं। वो सर उठाए परवाज भरते परिंदों को देखने लगी। कुदरत के हसीन मनाजिर हर तकलीफ मिटा देते हैं। बस सामने होती है कुदरत और पुकार में होता है कादिर। जब पुकार में हो कादिर मुतलक हो तब होती है सुकून कल्बी की शुरुआत और फिर दिल ईमान ले आता है कि यकीनन अंजाम आगाज से बेहतर होगा। अभी ने आए 1 घंटा ही गुजरा था कि गर्मी से सबकी हालत ख़राब होने लगी और सब खुद तो आए ही थे। यास्मीन अर्श को भी ज़बरदस्ती साथ ले आई। सिदरा और आफरीन तो मस्जिद के बरामदे में बैठ गए, जबकि यास्मीन और सवेरा बातों में मगन मस्जिद की अंदरूनी इमारत देखने में मशगूल थीं। हानिया हस्बे मामूल फ़ोन पर किसी से बात करती एक जानिब चली गई। अर्श शदीद उकताहट का शिकार था। मुअज्जिन की आवाज़ फ़ज़ा में बुलंद हुई तो सब असर की नमाज के लिए खड़े हो गए। मर्दों की अलग और औरतों की अलग सफ़े बिछ गईं। नमाज से फारिग होने के बाद सब सहन में इकट्ठे हुए। तौबा, इतनी गर्मी है। हानिया दुपट्टे के पल्लू से खुद को हवा देते हुए बोली। सब गर्मी से बेहाल हो रहे थे। अर्श ने कनखियों से सवेरा को देखा जो सर से लेकर पाँव तक ढकी हुई थी। मजाल है जो इसने एक बार भी गर्मी की शिकायत की हो। अर्श ने सवेरा की नज़रों के ताक़ुब में देखा। सहन के एक जानिब बहुत से कबूतर सुकून से बैठे थे, लेकिन 2 साला बच्ची खिलखिलाती इनको पकड़ने की कोशिश में थी। बच्ची के करीब आते ही वो उड़ जाते। उनके उड़ने पर वो ज़ोर से हंसती, अपनी माँ की जानिब भागती। अर्श मुस्कुरा दिया, यकीनन वो भी मुस्कुरा रही थी।
وہ سب مسجد سے باہر نکل آئے۔ سیڑھیاں اتر کر دائیں جانب علامہ اقبال کا مزار تھا اور سامنے رنگ برنگے پھولوں سے سجا باغیچہ۔ وہ سب واپسی کے لیے چل پڑے۔ گرمی کی وجہ سے کھانے کا ارادہ ملتوی کر کے سب نے ٹھنڈا شیک پینے کا فیصلہ کیا۔ سویرا اپنے دھیان میں چل رہی تھی کہ اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے سے اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ وہ رک گئی، فوراً کسی چیز کا سہارا لیا۔ ارد گرد کی آوازیں بند ہو گئیں۔ کانوں میں سیٹی کی آواز محسوس ہونے لگی۔ چند لمحے آنکھیں بند کیے کھڑی رہی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ ارد گرد بہت سے لوگ تھے۔ اس نے سامنے دیکھا، سب آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس نے ماں کو آواز دینی چاہیے، لیکن اس سے پہلے سویرا نے اس چیز کو دیکھا جس کا اس نے سہارا لیا تھا۔ نظریں بلیو شرٹ سے ہوتی عرش کے چہرے تک گئیں، جس کے چہرے پر پریشانی، فکر مندی کی لکیریں واضح تھیں۔ سویرا نے مضبوطی سے عرش کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ سویرا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ معاف کیجیے گا، مجھے ایک دم سے چکر آ گیا تھا۔ شرمندگی سے اس کی آواز کانپ گئی۔ میں خالہ کو آواز دے رہا تھا لیکن شور کے باعث ان تک آواز نہیں گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس سے پہلے سویرا کوئی جواب دیتی، ایک بچی لکڑی کے بانس پر موتیے کے پھولوں کے گجرے لگائے ان کے پاس آئی۔ باجی یہ لے لو، ہاتھوں میں بڑے پیارے لگیں گے۔ بچی کو دیکھتے سویرا نے اسے پیسے دینا چاہے لیکن اس کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے۔ عرش نے جیب سے پیسے نکال کر بچی کو پکڑائے۔ ہمیں گجرے نہیں چاہیے۔ سویرا نے بچی کو گجرے اتارتے دیکھا تو فوراً منع کیا۔ نہیں باجی، میں بھیک نہیں لیتی، گجرے نہیں لینے تو پیسے بھی مت دو۔ اچھا ناراض نہ ہو، لاؤ دو۔ بچی گجرے عرش کو پکڑاتی چلی گئی۔ عرش نے گجرے سویرا کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ تیزی سے کسی نے اس کے ہاتھ سے گجرے جھپٹ لیے۔ شکریہ عرش۔ ہانیہ نے تیزی سے گجرے اپنے ہاتھوں میں پہن لیے۔ سویرا اور عرش دونوں ہی اس کی اچانک آمد پر گھبرا گئے۔ بچی بہت معصوم تھی، اس لیے میں گجرے لینے رک گئی۔ میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے اس لیے۔ سویرا نے بات سنبھالنی چاہیے۔ اتنی وضاحت کیوں دے رہی ہو؟ ہانیہ میسنی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی۔ میں وضاحت نہیں دے رہی۔ خیر جو بھی ہے، ہم سب سامنے چاٹ کھا رہے ہیں، تم دونوں کا جب دل چاہے آ جانا۔ ہانیہ بول کر پلٹ گئی۔ سویرا نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا۔ معافی چاہتا ہوں، اس کا دماغ خراب ہے۔ عرش کا بس چلتا تو وہ کب کا ہانیہ کا قتل کر چکا ہوتا۔ وہ دونوں دکان کی جانب بڑھ گئے۔ روزمرہ کے کام شروع ہو چکے تھے، ساتھ ہی برسات کی آمد بھی ہو چکی تھی۔ آج صبح سے بارش زور و شور سے برس رہی تھی اور اس کے رکنے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادل کی گرج سے سویرا کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرے کا راج تھا، بجلی بند تھی، تیز چلتی ہوا اور گرجتے بادل دل دہلا رہے تھے۔ کسل مندی سے آنکھوں کے دروا کرتے اس نے بایاں ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ فون کی روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ چند لمحوں بعد اس نے اسکرین کو دیکھا تاکہ ٹائم دیکھ سکے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ سویرا نے فون واپس رکھ دیا اور خالص ذہنی کی کیفیت میں اندھیرے کو گھورتی رہی۔ وہ رات 9 بجے سے سو رہی تھی۔ آج کل وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی سوئی پائی جاتی تھی۔ وہ روز اگلے داخلے کا ارادہ کرتی، اگلے ہی لمحے رد کر دیتی کہ 1 سال آرام کر لیا جائے، اگلے سال داخلہ لے لیا جائے گا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنا کر وضو کے لیے اٹھ گئی۔ کمرے میں گلی میں لگے بلب کی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ گئی۔ نظر نیچے موٹر سائیکل کے ساتھ کھڑے عرش پر گئی تو اسے جھٹکا لگا۔ وہ رات سے ادھر کھڑا تھا۔ سویرا نے فوراً فون اٹھا کر یاسمین کا نمبر ملایا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی لیکن دوسری جانب سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ فون پلنگ پر پھینکتی سویرا نیچے آئی۔ نعیم صاحب نماز کے لیے اٹھ چکے تھے۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت ٹھیک ہے میری رانی کی؟ رات کو جلدی کیوں سو گئی؟ نعیم صاحب نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا۔ جی ابا میں ٹھیک ہوں، آپ باہر جا کر عرش کو دیکھیں، وہ رات سے باہر کھڑے ہیں۔ یاسمین کو فون کر رہی ہوں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ اللہ غارت کرے رفیق کو، خدا کا خوف نہیں، یتیم بچے پر اتنا ظلم۔ جا نعیم، عرش کو اندر لے کر آ، بچہ پوری رات بارش میں بھیگتا رہا ہے۔ دادی نے افسوس کیا۔ نعیم صاحب تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ چابی نہیں دینی تو دیواروں سے تارے تو ہٹا دے، دیوار پھلانگ کر ہی بیچارہ اندر چلا جائے۔ سویرا نے جلدی سے باورچی خانے میں آ کر چائے اور انڈا چولہے پر چڑھایا۔ ابا عرش کو مہمان خانے میں لے گئے تھے۔ نعیم کے کپڑے دے کر آئی ہوں، نہا کر آتا ہے تو چائے بھجوا دینا۔ سدرا کے چہرے پر بھی دکھ چھایا ہوا تھا۔ عرش تولیے سے بال رگڑتا پلنگ پر آ کر بیٹھا۔ اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ نعیم صاحب سامنے کرسی پر بیٹھے تھے۔ کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا تو تم ہمارا دروازہ بجا دیتے، یہ نہیں تو مجھے فون ہی کر دیتے، انہوں نے ناراضی سے کہا۔ عرش کو بخار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو سویرا نے مجھے آ کر بتایا کہ تم باہر کھڑے ہو، تب مجھے پتہ لگا، وہ نہ دیکھتی تو تم تو صبح تک ایسے ہی کھڑے رہتے۔ ابا، سویرا نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر نعیم صاحب کو پکارا تو وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ عرش فون دیکھنے لگا کہ آیا چل رہا ہے یا بھیگنے کے باعث ناکارہ ہو چکا ہے۔
नईम साहब ने ट्रे इसके सामने रखी। इस सब की क्या ज़रूरत थी? उबला हुआ अंडा, चाय और बुखार की दवाई देखते इसने नईम साहब को कहा, बिल्कुल ज़रूरत थी, ये तुम्हारा अपना ही घर है, आराम से चाय पीकर सो जाओ, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। दरवाज़ा बंद करते चले गए तो अर्श कमर तकिए से लगाकर लेट गया। जिस्म दर्द करने लगा था। इसने चाय के मग को देखा। सवेरा ने मुझे आकर बताया कि तुम बाहर खड़े हो, तब मुझे पता लगा। कुछ देर पहले कही गई नईम साहब की बात समात में गूंजी। इसने हाथ बढ़ाकर मग उठा लिया। ऊपर कमरे में सवेरा नमाज़ पढ़कर मेज़ के पास आ गई और किताबों के साथ रखी फ़ाइल उठाकर देखने लगी। इसने कुछ कागजात की तस्वीरें बनाई और इनके साथ पैगाम लिखकर एक नंबर पर तस्वीरें भेज दी। बाहर रोशनी छाने लगी थी। रिमझिम अभी भी बरस रही थी। अर्श की इजाज़त मिलते ही यास्मीन कमरे में दाखिल हुई। आप उठ क्यों गए? यास्मीन ने आगे बढ़कर इसे चाय थमाई। वो गीले बाल संवार रहा था। मुसलसल लेटे रहने से मेरी कमर दुख गई है, इतने आराम की आदत नहीं है मुझे। इसने मग लबों से लगाया। शाम को शराफत से किताबें लेकर आ जाना, अगले हफ्ते तुम्हारे इम्तहानात शुरू हो रहे हैं। यास्मीन ने इस बात में सर हिलाकर हाथ उसके सामने किया। ये लें, इसे अपने पास रखें। यास्मीन ने घर की चाबी इसके हवाले की। चची तुम पर गुस्सा करेंगी, करती रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलकर वो बाहर चली गई तो अर्श घर से बाहर निकल आया। वो पहले से ताज़ा दम लग रहा था। आज इतवार का दिन था। गली में खूब रौनक का समा था। वो गेट के साथ खड़ा बच्चों को देखने लगा। पास से जाते शनासा लोगों को सलाम भी कर लेता। इसने चाय का घोंट लिया। अर्श भाई कहानी सुना दें। छोटी बच्चियां जो साथ घर की सीढ़ी पर बैठी अपनी गुड़ियों से खेल रही थी, इससे फरमाइश करने लगी। वो बौखला गया। अंदर सहन में झाड़ू लगाती सवेरा तक बासानी आवाज़ जा रही थी। वो बच्चों की फरमाइश सुनकर हंस दी। मुझे कोई कहानी नहीं आती, उसने जान छोड़ाई। आप इतने ज़्यादा बड़े हो गए फिर भी आपको कहानी नहीं आती? बच्ची की बात पर बाकी सब हंसने लगे। सुनाएं अर्श भाई, वो सब ज़िद करने लगे। अच्छा सुना रहा हूँ। अर्श ने दिमाग पर जोर डालना चाहा। अब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाला बच्चों को क्या कहानी सुनाए। एक शहज़ादा था। बच्चे इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। एक शहज़ादी थी। वो रुक गया। जब काफ़ी देर तक कुछ ना बोला तो एक बच्चा बोल उठा, आगे क्या हुआ? आगे क्या होना है? हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे। बच्चे चीख उठे जबकि सवेरा हंसने लगी। असर की नमाज के बाद वो छत पर आ गया। फलक बादलों के घेरे में था। रात तक बारिश के इम्कानात थे। यास्मीन किताबें लेकर इसके पास आ गई। अर्श अक्सर इसकी पढ़ाई में मदद कर देता था। बाकी घर वाले नीचे टीवी देखने में मसरूफ़ थे। अर्श किताब खोलता यास्मीन को सबक समझाने लगा। इसको पढ़ो, कोई सवाल हुआ तो पूछ लेना। किताब इसके हवाले करता वो उठ गया। इर्द गिर्द छतों पर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। वो चलता दीवार के पास आ गया। नीचे देखने से सामने नईम साहब का सहन नज़र आता था। वो मेहमानों से मिल रहे थे। अर्श ने पहले कभी इन लोगों को नहीं देखा था। पलटकर यास्मीन के पास आ गया। हवा तेज़ हो रही थी। खाला की तरफ कौन लोग आए हैं? इसने सरसरी अंदाज में पूछा। चचा के कोई दोस्त हैं, उन्होंने सवेरा का रिश्ता मांगा था। शायद इसी सिलसिले में वो लोग बात करने आए हैं, सवेरा ने जिक्र किया था। बादल ज़ोर से गरजे, साथ ही हर तरफ मिट्टी उड़ने लगी थी। अर्श भाई नीचे चलें, आंधी आ रही है। यास्मीन किताबें उठाती नीचे भागी। झक्कड़ से इर्द गिर्द चीज़ें गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। मिट्टी अर्श की आंखों में गई तो इसने ज़ोर से आंखें मींच लीं। बालों की चोटी बनाकर वो पलंग पर आकर लेट गई। तबीयत में अजीब सी बेचैनी थी। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। सिदरा और नईम को लड़का पसंद था और वो दोनों मुतमईन भी थे। दादी को भी कोई खामी नहीं लगी, लेकिन न जाने क्यों वो मुतमईन नहीं थी। आजकल वैसी तबीयत में बोझलपन रहने लगा था। वो झुंझला कर उठी और कमरे का बल्ब जलाकर बाहर बालकनी में आ गई। 14वीं का चांद आसमान पर पूरी ताबनाकी से रोशन था। वो कभी बादलों की ओट में छुप जाता तो कभी इनके पीछे से झांकने लगता। वो दुपट्टा सर पर जमाती सूरह यासीन दिल में दोहराने लगी। वो हाफजा थी। जब भी बेचैन होती कुरान पाक पढ़ने लगती। दाएं बाएं चहलकदमी करते वो अपने ध्यान में थी कि मोटरसाइकिल की आवाज़ पर चौंकी। आज तो छुट्टी थी। अर्श इतनी रात तक कहाँ था? मोटरसाइकिल से उतरकर इसने चाबी दरवाजे पर लगानी चाहिए कि दरवाज़ा पहले ही खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली हानिया थी। अर्श इसे नज़रअंदाज करता मोटरसाइकिल सहन में खड़ी करने लगा। सवेरा ऊपर से ही नहीं देख रही थी। अर्श के तेवर बिगड़े हुए थे। इससे पहले वो अपने कमरे की जानिब बढ़ता, हानिया ने मुस्कुराते इसका बाजू पकड़ लिया। लाट साहब का मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? हाथ पीछे करो। चेहरे की सख्ती में इजाफा हुआ। ना करूं तो? उसका ही कहना था। अर्श ने आओ देखा ना ताओ एक कड़ाकेदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद कर दिया। सवेरा ने हैरत से मुंह पर हाथ रखा। हानिया थप्पड़ की वजह से लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरी थी। 1000 बार कह चुका हूँ मुझसे दूर रहा करो। अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लिया करो।
یہ تھپڑ مجھے بہت پہلے تمہیں مارنا چاہیے تھا، چیخ کر بول رہا تھا۔ ہانیہ حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ کسی نے عرش کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چلانے لگی۔ امی، ابو، اس کے چلانے سے سب نیند سے جاگ کر صحن میں آ گئے۔ ہائے ہانیہ، تجھے کیا ہو گیا؟ آفرین نے اسے نیچے گرے دیکھا تو حیران ہوئی۔ ابو، عرش میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، بول کر اونچا اونچا رونے لگی۔ یاسمین اور آفرین نے صدمے سے عرش کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ جھوٹی مکار عورت، اس نے اپنے چچا کو دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے چچا، میں نے کچھ نہیں کیا، لعنت ہو تم پر ہانیہ۔ تیش میں ہانیہ کی جانب بڑھا جو آفرین کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ رفیق نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ عرش کے چہرے پر لگایا۔ دور رہو میری بچی سے۔ چچا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سویرا کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ یا اللہ، اتنا بڑا بہتان! اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بکواس بند کرو۔ عدیل نے آگے بڑھ کر عرش کا گریبان جکڑ لیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پر بہتان لگا رہی ہے۔ ہانیہ، اللہ کے قہر سے ڈرو، وہ چلا کر بولا۔ سویرا بنا کچھ سوچے تیزی سے نیچے آئی۔ نعیم صاحب شام کو کام کے سلسلے میں کراچی گئے تھے۔ صحن میں سوتی دادی اور سدرا دروازہ کھلنے کی آواز پر جاگ گئیں۔ سویرا، کہاں جا رہی ہو؟ دادی نے پوچھا۔ بنا کوئی جواب دیے باہر نکل گئی۔ یاسمین، دروازہ کھولو۔ وہ زور سے دستک دینے لگی۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ پورے محلے میں اندھیرا چھا گیا۔ یاسمین نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سویرا، وہ اسے پیچھے ہٹاتی آگے بڑھی۔ سدرا بھی بوکھلائی ہوئی سی وہاں آ گئی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے چچا، مجھ پر بہتان لگا رہی ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو شروع دن سے کہہ رہی تھی اسے گھر سے نکالو۔ ہائے، ہمیں کیا پتا تھا یہ درندہ نکلے گا۔ اللہ برباد کرے تجھے عرش۔ آفرین کی آہیں زور و شور سے جاری تھیں۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عدیل جو عرش کا گریبان جکڑے کھڑا تھا۔ سویرا نے جھٹکے سے اسے پیچھے کیا۔ بکواس کر رہی ہے ہانیہ، بہتان لگا رہی ہے عرش پر۔ اس کے چلا کر کہنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ عرش نے حیرت سے اپنے آگے کھڑی سویرا کو دیکھا۔ اندھیرا چار سو پھیلا ہوا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پہلے ہانیہ نے عرش کا بازو پکڑا تھا۔ ہانیہ کی بدتمیزی پر عرش نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ سویرا کی بات پر یاسمین نے عرش کو دیکھا جو بالکل خاموش کھڑا تھا۔ سویرا، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، تم اپنے گھر جاؤ۔ آفرین کے کہنے پر وہ آگے آئی اور ہانیہ کو کھینچ کر سامنے کیا۔ یہ ایک بے گناہ کے کردار کا معاملہ ہے، اس کی عزت کا سوال ہے، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اس نے ہانیہ کا بازو پکڑا۔ صحن روشن ہو گیا۔ عرش کی نظریں سویرا کے آنچل سے ڈھکے سر پر ٹکی تھی اور سویرا کا رخ ہانیہ کی جانب تھا۔ سچ بولو ہانیہ، بتاؤ سب کو سچ کیا ہے؟ لڑکی ہو کر تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ ٹھیک ہے، تمہارے عرش کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن تم اسے بچانے کے لیے مجھے جھوٹا کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئیں۔ بکواس بند کرو۔ عرش تیزی سے آگے آیا۔ اگر بر وقت عدیل اسے نہ پکڑتا تو ایک زوردار تھپڑ ہانیہ کے چہرے پر رسید ہو چکا ہوتا۔ خدا کی لعنت ہو تم پر ہانیہ، وہ چلا کر بولا۔ خالہ، سویرا کو یہاں سے لے کر جائیں، اس نے سدرا کو کہا۔ چچا، ہانیہ جھوٹ بول رہی ہے، عرش نے کچھ نہیں کیا۔ سویرا روتے ہوئے رفیق کو بولنے لگی جو غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ سویرا، آپ جائیں، خدا کا واسطہ ہے جائیں۔ خالہ، سویرا کو یہاں سے لے کر جائیں۔ عرش بے بسی کی انتہا پر تھا۔ خدا تمہیں غارت کرے ہانیہ۔ سدرا آگے بڑھ کر سویرا کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئیں۔ بارش برسنے لگی تھی۔ ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا، ذلیل انسان۔ میں نے تمہیں رہنے کے لیے چھت دی، تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اچھا ہوتا تم بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ غصے سے بولتے وہ کمرے میں چلے گئے۔ باقی سب بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ عرش کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے سامنے یاسمین کو روتے ہوئے دیکھا اور پھر تیزی سے کمرے سے سامان اٹھانے چلا گیا۔ سویرا گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ بند کرتے وہ میز پر پڑی ڈائری پر کچھ لکھنے لگی۔ اس نے ایک چھوٹا بیگ نکال کر اس میں ڈائری، فائل اور ایک لفافہ رکھا اور پھر چادر لیتی بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ بارش کے باعث بجلی بار بار جا رہی تھی۔ پوری گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تبھی اس نے دیکھا عرش گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ پورا محلہ نیند کی آغوش میں تھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، تبھی اپنے نام کی پکار پر ٹھہر گیا۔ عرش، آپ کیوں آئی ہیں؟ بنا پلٹے بولا۔ سویرا گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ عرش نے سر نہیں اٹھایا تھا جبکہ سویرا نے چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا۔ یہ رکھ لیں۔ بنا کوئی سوال کیے، بنا انکار کیے، آپ کو آپ کی محبوب چیز کا واسطہ ہے۔ عرش، یہ لے لیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے عرش کو کچھ کہنے کا موقع دیا ہی نہیں تھا۔ عرش نے آہستہ سے بیگ پکڑ لیا۔ یہاں سے بہت دور چلے جائیں، اتنا دور کہ یہاں کی ساری تلخ یادیں، ساری تکلیفیں دھندلا جائیں۔ کبھی یہاں مت آئیے گا اور نہ ہی کبھی یہ سوچیے گا کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے۔
اللہ آپ پر लगा इल्ज़ाम मिटा देंगे, मैं आपके लिए बहुत दुआ करूँगी। वापस घर की जानिब बढ़ गई। इसने गर्दन मोड़कर इसे देखा। चंद कदमों का फासला तय करके वो ठहर गई। बिजली आ गई थी। बारिश में भीगती सड़क रोशन हो गई। अर्श की नज़रें सवेरा पर थीं। इसने पलटकर अर्श की आंखों में देखा। बादल ज़ोर से गरजे। बारिश में तेज़ी आ गई। दोनों की नज़रें धुंधला गईं। अर्श, मैं आपको अपने अल्लाह के अमान में देती हूँ, फ़ी अमानिल्लाह। वो चली गई, लेकिन अर्श इसकी भीगी आंखों को देखते ठहर गया था। वो मंजिल से तो गायब हो चुकी थी, लेकिन दर हकीकत वो इसके दिल में कैद हो गई थी। वक्त गुजरता जा रहा था। वो जाए नमाज पर बैठी रोते हुए दुआ में मशगूल थी। दिमाग में उभरते खौफनाक ख्यालात इसे बुरी तरह डरा रहे थे कि अर्श को इंतहाई कदम ही ना उठा लें। अल्लाह, मुझसे जितना हो सका मैंने किया। अल्लाह, आप ताकत से बढ़कर नहीं आजमाते, आप अर्श को संभाल लें। 2 घंटे से मुसलसल चल चल कर अब वो बस स्टॉप पर शेड के नीचे आकर बेंच पर बैठ गया था। दिमाग की नसें फटती महसूस हो रही थीं। आंखें खुश्क और वीरान थीं। अच्छा होता तुम भी अपनी माँ के साथ मर जाते। सर उठाकर सुरमई बादलों में घिरे आसमान को देखता कदम कदम चलता बीच सड़क पर आ गया। बारिश रुक चुकी थी। सुरमई वीरान सड़क पर वो तन्हा खड़ा था। आकाश को तकती आंखों में कर्ब की किरचियाँ नुमायाँ हुईं। तभी मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हुई। साथ ही मस्जिद थी। अजान का हर लफ्ज़ इसकी रूह में उतरने लगा। मौलवी साहब के खामोश होते वो चंद लम्हे ज़मीन को घूरता रहा। फिर सामान उठाकर मस्जिद की जानिब बढ़ गया। फजर की नमाज़ पढ़कर वो मस्जिद के बरामदे में गए। बरामदे में आ गया। नमाजी जा चुके थे। नया दिन शुरू हो चुका था। पुत्र, कोई परेशानी है? मौलवी साहब ने इस्तफसार किया तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। नाश्ता करोगे? मौलवी साहब बुज़ुर्ग आदमी थे। नहीं, मैं चलता हूँ। सामान उठाने लगा था जब मौलवी साहब ने इसे रोक दिया। बैठे रहो, मैंने चाय मंगवाई है, पी कर जाना। वो इसे बैठने का कहकर सहन में चिड़ियों के लिए दाना डालने लगे। इसने सामान एक तरफ करना चाहा था, तभी इसकी नज़र सवेरा के दिए गए सामान पर गई। इसने बैग उठाकर खोला। सबसे ऊपर डायरी थी। इसने डायरी निकाल कर खोली। अर्श, कभी भी मायूस मत होइएगा। आप यही सोच रहे होंगे कि मैं कौन होती हूँ आपके मामलात में दखल अंदाजी करने वाली। लेकिन अर्श, मैं अपने आप को कभी भी आपकी फ़िक्र से आज़ाद नहीं कर सकी। बहुत दफ़ा मुझे आप पर गुस्सा भी आया कि क्यों आप कुछ नहीं करते, क्यों आपने ज़िंदगी जीना छोड़कर ख़ुद को हालात के हवाले कर दिया। अर्श, हाथ धर कर नहीं बैठ जाते। ज़िंदगी मुश्किल होती है, लेकिन इन मुश्किलात का डट कर सामना करते हैं। सब गलत हो रहा हो तब भी यकीन रखें कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह को आपसे हम सबसे ज़्यादा प्यार है। अर्श की आंखें नम हो गईं। रब, सोने को तुझसे ज़्यादा प्यार है। माँ की आवाज़ कानों से टकराई। अल्लाह जिससे प्यार करते हैं इसे आजमाइशों से गुजारते हैं ताकि वो इंसान उसके करीब हो जाए। अल्लाह सब्र का इम्तहान लेते हैं। अर्श, सब्र की ताकत से रब मिलता है। वो जिसे अपने करीब करना चाहते हैं इसे तकलीफ़ और आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं। वो आपको भी अपने लिए खालिस कर रहे हैं। यकीन रखें, वो आपको इनाम से ज़रूर नवाजेंगे। वो आपके ज़ख्मी दिल पर मरहम ज़रूर रखेंगे। आप देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। अर्श ने हाथ उठाकर गाल साफ़ किया। इसने सफ़ा पलटा। आप इस्लामाबाद चले जाएं। मैंने पिछले हफ्ते यास्मीन से आपकी CV मंगवाई थी। इस्लामाबाद में मेरे मामू रहते हैं। मैंने आपकी CV इन्हें भेज दी थी। माफ़ी चाहती हूँ, आपसे पूछे बगैर ये सब किया, लेकिन मैंने बस उनसे बात की थी। मैंने यास्मीन को कहा था जब आपके लिए मामू का जवाब आएगा तब वो आपको बता दे। मामू ने किसी जानने वाले की तरफ से आपके लिए कॉल की थी। कार्ड और एड्रेस आगे है। आप इस्लामाबाद जाते ही उनसे रब्ता करें। यह मत समझिएगा मैंने आप पर कोई एहसान किया है, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ़ एक कोशिश की है, वो कोशिश जिसका हुक्म मेरे अल्लाह ने भी दिया है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो। अपना ख्याल रखिएगा। हानिया की बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा अल्लाह जानता है मैं कैसी हूँ। आप भी सब भूल कर नई ज़िंदगी शुरू करें। जब अल्लाह जानता है कि आप सच्चे हैं, आपका किरदार साफ़ है, तो किस बात की परेशानी? लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप मुतमईन रहें। अर्श ने कार्ड देखकर डायरी बंद कर दी। बेचैनी, तकलीफ़, कुछ भी इसका दिल महसूस नहीं कर रहा था। इसे सब कुछ ठीक लग रहा था। इसने डायरी पर हाथ फेरा। क्या किसी के अल्फाज दिल को इतना पुरसुकून कर सकते हैं? क्या लफ्ज़ भी मरहम बनते हैं? इसने सुकून से चाय पीकर अलमारी में रखा कुरान पाक उठाया और 1 घंटा तिलावत करके सामान उठाता इस्लामाबाद जाने के लिए निकल पड़ा। इसने अल्लाह पर भरोसा कर लिया था और जो हो गया था इसे भूलकर आगे बढ़ना था। जब वो और इसका अल्लाह जानता है कि वो सच्चा है तो और क्या चाहिए। इसका यकीन अल्लाह था, इसलिए कामयाबी अब यकीनी तौर पर इसकी थी। एक नया सफ़र इसका मुंतज़िर था।
दोपहर के 12 बजे वो इस्लामाबाद पहुंचा था। पास ही एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर इसने होटल में कमरा लेकर तेज़ी से अपनी हालत दुरुस्त की। होटल से कॉलेज तक आधे घंटे का फासला था। अच्छे से तैयार होकर इसने अपनी फ़ाइल उठाई और कॉलेज के लिए निकल खड़ा हुआ। ठीक आधे घंटे बाद वो कॉलेज की इमारत के बाहर खड़ा था। गार्ड इसे एडमिन ऑफिस में ले आया, जहां जान पहचान के बाद इसे इंतज़ार करने का कहा गया था। वो मुस्तरिब सा सोफ़े पर बैठा इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था। इमारत बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत थी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल साहब ने इसे अपने दफ्तर में बुलाया तो वो उठ खड़ा हुआ। सलाम करते इसने अपनी नशिस्त संभाल ली। अर्श खलील। प्रिंसिपल इसकी सीवी का जायज़ा ले रहे थे। आपकी सीवी में देख चुका था। वो अपना चश्मा उतारते सीधे होकर बैठे। देखो बच्चे, बात यह है कि आपके ग्रेड और नंबर तो बहुत अच्छे हैं, इस शोबा में आपको तजर्बा नहीं। अर्श ने सर हिलाया। लेकिन घबराओ नहीं, इतनी भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। अर्श इनको देखकर मुस्कुरा दिया। वो काफ़ी हंसमुख तबीयत के मालूम हो रहे थे। शब्बीर साहब, जो कि इंग्लिश के उस्ताद थे, कुछ दिन पहले सेहत की ख़राबी की वजह से नौकरी छोड़ गए थे। मैं बहुत परेशान था, साथ ही आपकी सीवी आ गई। सच बताऊं तो आपका आना मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं है। मेरी तो परेशानी हल हो गई। इतनी जल्दी नया उस्ताद ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। अर्श नर्म तासुर लिए इन्हें सुन रहा था। यहाँ कब आए? फ़ाइल बंद करते इस्तफसार किया। सुबह ही पहुँचा हूँ। बात यह है कि 2-3 दिन आपका डेमो लिया जाएगा, फिर पैनल आपका इंटरव्यू लेगा, फ़ाइनल। अर्श बगौर इनकी जाने मुतवज्जा था। उन्होंने फ़ाइल बंद करते सर उठाया। आप कॉलेज का विज़िट कर लें। 2-3 बातें करके अर्श उठ गया। गार्ड इसे पूरा कॉलेज दिखा रहा था। वो वापस ऑफिस की जानिब आ रहे थे जब एक क्लास के बाहर 2 लड़के उठक बैठक करते नजर आए। अर्श ने उनके सामने खड़ी लड़की को देखा। यकीनन वो इनकी टीचर थी, जो हाथ बांधे गुस्से से इनसे पूछ रही थी, न्यूटन के कितने कानून हैं? दोनों ने एक साथ कहा, 3। अब ये भूलने नहीं चाहिए। जाओ क्लास में। वो दोनों क्लास में चले गए तो वो पलटी। मैरून सूट में मलबूस, सुनहरे बालों की ऊंची पोनी बनाए इसकी नज़र अर्श से टकराई। अर्श गार्ड के साथ चलता उसके पास से होता आगे जाने लगा था जब लड़की ने गार्ड को रोक लिया। अमजद साहब। इसने इशारे से गार्ड से अर्श के बारे में इस्तफसार किया। मैम, ये शब्बीर साहब की जगह नए उस्ताद आए हैं। लड़की सर हिलाती अर्श के सामने आई। मेरा नाम अक्सा है, मैं फ़िज़िक्स पढ़ाती हूँ। सलाम के बाद इसने अपना तारुफ करवाया, अर्श खलील। वो क्लास में चली गई और वो वापसी के लिए बढ़ गया। मैं चलता हूँ सर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। वो मुसाफा करता सीधा हुआ। कहाँ ठहरे हो? इमरान साहब ने दराज में से कार्ड निकालते इस्तफसार किया। सर, अभी तो होटल में रुका हूँ। ये लो, इस पर अली का नंबर लिखा है, पास ही इसका हॉस्टल है, उससे रब्ता करो। रिहाइश करीब होगी तो आने जाने में कोई ख़र्चा नहीं होगा, बाकी इससे मिलकर तसल्ली कर लो। और शुक्रिया अदा करता बाहर निकल आया। इसकी आंखें खुशी और शुक्र से नम होने लगीं। अल्लाह किस कदर मेहरबान है। कॉलेज के साथ ही मस्जिद थी। इसने ज़ोहर की नमाज अदा करते अल्लाह का शुक्र अदा किया और हॉस्टल की जानिब चल पड़ा। हर परेशानी हल होती जा रही थी। किसी की मुसलसल की जाने वाली दुआएं रंग ला रही थीं। 1 घंटे तक इसकी रिहाइश का मसला भी हल हो गया। वो जाकर होटल से अपना सामान ले आया था। उसको जर्रार नामी लड़के के साथ कमरा मिला था, जो कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अर्श नहाकर हल्की टी शर्ट और ट्राउज़र पहनकर पलंग पर आकर लेट गया। जिस्म थकन के बाइस दुख रहा था। आज के मसरूफियत भरे दिन में कल की सारी तल्ख यादें जहन से ज़ाइल हो चुकी थीं। वो आंखों पर हाथ रखे लेटा था जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर बंद हुआ और साथ ही कमरा रोशन हो गया। वो आंखों से हाथ हटाता उठकर बैठा। कम उम्र लड़का कंधे पर लटके बैग को अपने पलंग पर फेंकता जूते उतार रहा था। अभी अली भाई ने बताया, मेरी तन्हाई का साथी आया तो जज्बात में भाग कर आया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, आपकी नींद ख़राब कर दी। वो जग से पानी निकालता अब अर्श की जानिब मुतवज्जा हुआ। कोई बात नहीं, वैसे जज्बात में क्यों? अर्श कमर तकिए से लगाता नीम दराज हो गया। कुछ देर दोनों बातचीत करते रहे। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा बहुत अपने बारे में बताया। अलमारी से कपड़े निकालता वो अर्श की जानिब पलटा। खाना लगने वाला है, जल्दी से उठ जाए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर दोनों साथ चलते हैं। वो बाथरूम में घुस गया जबकि अर्श चादर हटाता और उठकर बैठ गया। खाना नीचे हाल में सब मिलकर खाते थे। अर्श को हॉस्टल पसंद आया था और इससे भी ज़्यादा खुश मिजाज सा ज़रार उसे अच्छा लगा था। ज़िंदगी एक डगर पर चलने लगी थी। सुबह कॉलेज, शाम को एकेडमी। मसरूफियत भरे दिन में एक रात का पहर ही था जब वो बालकनी में खड़ा आसमान को तकता माजी में खो जाता था। आसमान को देखते इसे क्या क्या याद नहीं आता था। अपना शहर, बादशाही मस्जिद, गली में खेलते बच्चे और वो 2 नैन जो इसके रग व जा में समा गए थे। इसने आंखें मूंद लीं। अर्श, मैं आपको अपने अल्लाह के अमान में देती हूँ।
सवेरा, दिल ने इसे पुकारा था। वो इसके लिए इतनी मोतबर थी कि वो इसे सोचने की भी गलती नहीं करता था, लेकिन न जाने क्यों आज दिल इतना बेकरार हो रहा था। पूरा 1 साल हो गया था इसे लाहौर शहर छोड़े। इसने पलट कर एक बार भी शहर को नहीं देखा था। सोना नहीं है। ज़रार इसके साथ आकर खड़ा हुआ। नींद नहीं आ रही। इसने गहरा सांस लेते खुद को माजी से निकाला और वाकई उसे नींद न आ ही नहीं रही थी। चलें, अच्छा हुआ आप जाग रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अकमल का फ़ोन आया था। इसके भाई ने कुछ फ्लैट्स बताए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। मैंने कमाल भाई को आपका नंबर दे दिया। अर्श ने ज़र्रार के कंधे पर हाथ रखा। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। इस हफ्ते अच्छा सा डिनर पक्का करें। ज़र्रार बहुत ही कोई भूखा था। इतना जो तुम ठूंसते हो पता नहीं वो जाता कहाँ है। अर्श ने ज़रार के हड्डियां नुमा जिस्म पर चोट की तो मुंह बनाकर रह गया। आज कॉलेज में सालाना अवार्ड की तकरीब थी। ऑडिटोरियम बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। स्टाफ अपनी ड्यूटी दे रहा था। एक लड़का अपने नाम की पुकार पर तालियों के शोर में स्टेज की जानिब जा रहा था। अक्सा अपने साथ खड़ी किसी टीचर से बात कर रही थी। तभी इसकी नज़र सामने दीवार के साथ टेक लगाए सीने पर बाजू बांधे अर्श पर गई। ब्लैक पैंट कोट पहने वो महफिल पर छाया हुआ था। इसकी नज़रें सामने अवार्ड लेते बच्चे पर थी। इस सारे अरसे में अक्सा ये जान चुकी थी कि अर्श अपने काम से काम रखने वाला लड़का है। स्टाफ में इसकी बहुत कम लोगों से बातचीत थी। अपनी शानदार कारकर्दगी से वो बहुत जल्द कॉलेज में अपना मुकाम बना चुका था। वो अपने ध्यान में था जब इसके नाम की सदा पूरे ऑडिटोरियम में गूंजी। इसने चौंक कर देखा। पूरा हाल बच्चों की तालियों से गूंज उठा था। वो बच्चों का पसंदीदा उस्ताद था। स्टेज पर मेहमान ख़ुसूसी से इनाम लेकर इसने सबका शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी जगह पर आ गया। तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। वो अवार्ड लिए बाहर निकल आया। स्टाफ रूम में आते अपना सामान समेटने लगा। तब अक्सा की आवाज़ पर इसकी जानिब पलटा। वो इसे मुबारक दे रही थी। अब हमें पार्टी कब मिल रही है? मुस्कुराते पूछ रही थी। जब आप कहें। चलें फिर आज ही अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं। आज थोड़ा मुश्किल होगा, असल में मुझे शिफ्टिंग करनी है। अर्श ने माजरत खा अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, कॉफ़ी तो हम फिर कभी पी लेंगे। वैसे आप हॉस्टल से शिफ्ट कर रहे हैं? जी, करीबी एक फ़्लैट लिया है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें फिर मुलाकात होती है। इसके जाते अर्श भी हॉस्टल से सामान लेने चला गया। कमाल जो कि डीलर था, इसके तवस्सुत से इसे एक मुनासिब कीमत पर एक फ़्लैट मिल गया था। आधी कीमत वो अदा कर चुका था। बाकी की रकम के लिए इसे 1 साल का वक्त दिया गया था। 1.5 साल में वो काफ़ी पैसे जमा कर चुका था। तनख्वाह इसकी बहुत अच्छी थी। साथ वो शाम की क्लासेस भी पढ़ाता था। फजूल खर्चे का इसे वैसे ही कोई शौक़ नहीं था। चाबी से दरवाज़ा खोलते फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ। इसका पोर्शन 3री मंजिल पर था। 2 कमरों, ओपन किचन और मुनासिब लाउंज वाला ये फ्लैट अर्शो अपने लिए बेहतरीन लगा था। घर खाली था। इसने बस एक कमरे का सामान ख़रीदा था। बाकी इसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। कमरे में आकर इसने कपड़े अलमारी में लगाए और कमरे की हल्की झाड़ पोंछ करके नहाने चला गया। नहा कर आया तो भूख ने सताना शुरू कर दिया। अब मसला खाने पीने का था। वो मोटरसाइकिल की चाबी उठाता बाहर निकल गया। आज इतवार का दिन था। सुबह उठते इसने चाय बनाई, फिर बाज़ार से पौधे लाकर बालकनी में रखे और सफाई में लग गया। किचन साफ़ करते इसे हंसी आ गई। कहाँ माँ इसे हाथ से निवाले बनाकर खिलाती थी और कहाँ अब वो घर की सफाइयों में लगा था। दोपहर तक वो काम से फारिग हो गया। नहाकर फ्रेश होते चाय बनाई और बालकनी में आ गया। फ्लैट के सामने कुशादा पार्क था जिसमें बच्चे खेल रहे थे। आसमान बादलों के लपेट में था। कोई और होता तो वो इस्लामाबाद की इस हसीन मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ होता, लेकिन अर्श के लिए सियाह आँखों की खूबसूरती देख लेने के बाद कोई मंज़र इसके मुकाबले में हसीन ही नहीं रहा था। चाय पीकर कमरे में आ गया। दराज से डायरी निकाल कर खोल ली। डायरी के अंदर आज भी अल्फाज जगमगा रहे थे। माजी की यादें इसे बेचैन कर रही थी। इसने वॉलेट से एक कागज़ निकाल कर आँखों के सामने किया। आप यहाँ? आवाज़ पर इसने चौंक कर सर उठाया। आज पहली दफ़ा आपको यहाँ देखा है। अक्सा इसके साथ फासले पर बैठ गई। आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं? जी, इसी बिल्डिंग में। अर्श ने सामने इशारा किया। वो सालगिरह पर मिलने वाला लेटर जिस पर सवेरा के लिखे अल्फाज थे फ़ौरन वॉलेट में रखने लगा। अक्सा की नज़रों से इसकी तेज़ी छुपी नहीं थी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रहे। अर्श ने सर उठाकर इसे देखा। गलत लग रहा है आपको? इसने संजीदगी से कहा। जानते हैं अर्श, मैं आज तक खुद से किसी को मुखातिब नहीं करती। इसने इसे देखा। वो सामने खेलते बच्चों को देख रही थी। आपकी शख्सियत ने मुझे आपकी जानिब मुतवज्जा किया। आपकी ज़ात की खामोशी और आंखों में बसे शोर से मुझे खौफ आता है। अल्लाह की तरफ से इनाम समझ लें कि मुझे खामोशी की ज़ुबान भी समझ आ जाती है। अर्श गौर से इसे देखने लगा। मैं ये तो जानती हूँ कि आप अकेले हैं, लेकिन अकेले से ज़्यादा आप दर्द में हैं।
अर्श के गले में गिल्टी डूब कर उभरी। इसने गर्दन मोड़कर इसके जर्द पड़ते चेहरे को देखा। सब भूल जाएं अर्श, जितना याद करेंगे इतनी अजियत बढ़ती चली जाएगी। तकलीफ दे माजी तो कब का भूल चुका हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं भूलना चाहता। कौन है वो सबसे अलग है। अर्श ने आंखें बंद की। अर्श, मैं आपको अपने अल्लाह के अमान में देती हूँ। आवाज़ जहन के पर्दों पर झिलमिलाई। उसने मुझे एक नई पहचान, एक नई ज़िंदगी की राह दिखाई है। अक्सा बगौर इसको देखने लगी, जिसके लब खामोश थे। मैं तो अपने आप से रूठ कर ख़ुद को हालात के हवाले कर चुका था, फिर अल्लाह ने इस अजीम लड़की को मेरी ज़िंदगी में भेज दिया। वाहिद वो जिसको देखते दिल ने कहा कि सवेरा के लिए अर्श को किसी मुकाम पर पहुंचना है। अक्सा बगौर इसे देख रही थी। इसके चेहरे के बदलते तासुरात तकलीफ़ की दास्तान सुना रहे थे, लेकिन वो लबों से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा था। सवेरा के लफ्ज़ों में मरहम था, मेरे हर दर्द का मरहम। इसको देखते सुकून सा मिलता था। मैं सवेरा को अपना बनाना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत का हर सियाह पन्ना इसके सामने अयां होता चला गया। अम्मा के बाद मैंने किसी को अपने लिए फ़िक्रमंद देखा है तो वो सवेरा थी। इसे पता न चला कि वो रो रहा है। वो डूबते सूरज को देखता है। अक्सा इसके जवाब की मुंतज़िर थी। दिल को इसकी हर एक अदा याद आती है, इसका नज़रें झुका कर चलना, इसकी आखिरी बात। वो लड़की चंद लम्हों में मेरे दिल में बसी थी, और आज सदियों की मुसाफत के बाद भी मैं इसे ख़ुद से जुदा नहीं कर सका। मैं आज जहाँ हूँ, जिस मकाम पर हूँ, अल्लाह के बाद इसके पीछे सवेरा है। वो मेरे लिए इतनी मोतबर है कि मैं इसके बारे में सोचना भी गुनाह समझता हूँ। वो सरापे इज़्ज़त है। वो अपने आप से मुखातिब था। आज दिल ने हर उस बात का इतराफ़ किया था जिससे वो ख़ुद भी अनजान था। अर्श की आंख से आंसू टूट कर गाल पर गिरा। बिना अक्सा को देखे उठकर चल दिया। इसे तन्हाई चाहिए थी। आज वो राज आया हुए थे जिनसे वो ख़ुद भी वाकिफ़ नहीं था। अक्सा इसके पोस्ट को देखने लगी। जिस लड़की का नाम अर्श ने अपनी ज़ुबान से नहीं लिया था, जिसके मुताल्लिक बात करने से अर्श एहतियात कर रहा था, वो कौन होगी? इस लड़की का मुकाम क्या होगा? वो लड़की किस कदर बुलंद मुकाम पर थी? मौसम बदलने लगा। शामें सर्द होने लगी थी। एकेडमी से वापसी पर वो खाने का सामान लेता आया। अभी वो फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठा ही था कि इसका फ़ोन बजने लगा। इसने फ़ोन उठाया। दूसरी जानिब ज़रार था, जो इसे अपने एक्सीडेंट का बता रहा था। अर्श के चेहरे पर परेशानी छलकने लगी। ठीक हो? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? जी ठीक हूँ, बस टांग पर लगी है। चलो शुक्र है, बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस भेजो, मैं पहुँचता हूँ। फ़ोन बंद करते ज़रार ने इसे एड्रेस भेज दिया। अस्पताल पहुंचकर ज़रार से मिला। अकमल भी वहाँ मौजूद था। डॉक्टर ने बैंडेज करके ज़रार को छुट्टी दे दी थी। मैं फार्मेसी से दवाएं लेकर आता हूँ, तुम लोग चलो। वो वहाँ बढ़ गया। अर्श दवाई लेकर पलटा ही था कि नईम साहब को देखते इसके कदम ठहर गए। इसे शदीद झटका लगा था। 2 सालों में उनकी सेहत ढल गई थी। वो सदियों के बीमार दिखाई दे रहे थे। इससे पहले वो वहाँ से गायब हो जाते, अर्श तेज़ी से उनके पास पहुँचा। चचा। उन्होंने चौंक कर इसे देखा, और अगले ही लम्हे अर्श को अपने सामने देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। अर्श, वो इनके गले लग गया। नईम साहब ने इसके कंधों पर हाथ रखा। माशाअल्लाह। अर्श को सेहतमंद और पुरवकार देखकर बहुत खुश हुए थे। आप इस्लामाबाद कब आए? अर्श का चेहरा खुशी से दमक रहा था। साल हो रहा है। नईम साहब दवाइयों की पर्ची जेब में डालने लगे। ये क्या हालत कर ली आपने? इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं? जिसकी अकलौती बेटी हर गुजरते दिन के साथ मौत के करीब हो रही हो, वो बाप कैसा होगा? भीगी आंखों से बोलते अर्श की धड़कन रोक गए। वो सन्नाटों की जद में आ गया। रोशन चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सवेरा को ब्रेन ट्यूमर है। वो रोने लगे, जबकि अर्श को लगा पूरी कायनात इस पर उल्टा दी गई है। 2 कदम पीछे हुआ। वजूद सुन सा होने लगा था। नहीं चचा, ये कैसे हो सकता है? बेयकीनी की कैफियत में था। काश ये ना होता। भीगी आंखें साफ करने लगे। कदम पीछे की जानिब उठाता वो झटके से पलटा, और अगले ही लम्हे अस्पताल से दौड़ता हुआ निकला था। अर्श को लग रहा था इसका सांस रुक जाएगा। दिल में घुटन सी होने लगी थी। सड़क पर इसे तेज़ी से चलता देखकर अकमल ने इसे आवाज़ दी, लेकिन इसके कान जैसे बंद हो चुके थे। इसने लरसते हाथों से मोटरसाइकिल पर चाबी लगाई। वो कैसे फ्लैट में पहुंचा, कैसे दरवाज़ा खोला, वो नहीं जानता था। रास्ते में कितनी बार वो गाड़ी के नीचे आते आते बचा था। कमरा गहरी खामोशी और अंधेरे में डूबा हुआ था। सवेरा को ब्रेन ट्यूमर है। अर्श ने कानों पर हाथ रख लिए। नहीं, कुछ नहीं हुआ सवेरा को। बालों में हाथ फेरता कमरे में चक्कर काटने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर थाम कर बैठ गया। फिर खिड़की से झांकते चांद ने देखा कि अर्श खलील फूट फूट कर रो रहा है। आज 2 दिन हो गए थे इसे घर में कैद हुए। ना वो कॉलेज गया, ना ही एकेडमी। इसने फ़ोन भी बंद कर रखा था। 2 दिन से वो सिर्फ पानी और चाय पर जिंदा था। बेड पर लेटा वो खला में घूर रहा था, जब मुसलसल बजते फ़ोन पर झुंझला कर उठ बैठा। इसने बिना देखे कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। क्या मुसीबत है?
उसकी सख्त आवाज़ पर अक्सा घबरा गई। माजरत, आपको तंग किया। 2 दिन से आप कॉलेज नहीं आ रहे थे, इसलिए आपकी खैरियत मालूम करनी थी। अर्श ने कनपटी दबाई। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने देखा नहीं कि आपका फ़ोन है। आप ठीक हैं? वो पूछ रही थी। सर में दर्द था लेकिन अब मैं बेहतर हूँ। आपने दवाई ली? मैं ठीक हूँ। अर्श ने आंखों को दबाया। अच्छा, ऐसा करें कि फ़्रेश होकर आ जाएं। मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। पास ही बुक स्टोर से कुछ किताबें लेनी है, इसके बाद आपको यहाँ की मशहूर कॉफ़ी पिलानी है। अर्श ने माजरत करना चाहिए लेकिन फिर रुक गया। वो नीचे मौजूद थी। उसे इनकार करना अच्छा नहीं लगा। पहले ही वो बदतमीज़ी का मुजाहरा कर चुका था। 10 मिनट बाद फ्रेश सा सियाह शलवार कमीज़ में मलबूस बाहर आता दिखाई दिया। आस्तीन कोहनियों तक मोड़ रखे थे। बढ़ी हुई दाढ़ी इस पर जच रही थी। अक्सा ने फ्रंट सीट से उतरकर चाबी अर्श के हवाले की। ड्राइविंग आती है ना आपको? इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा तो अर्श ने इसके हाथ से चाबी पकड़ ली। ज़रार और अकमल इसे ड्राइविंग सिखा चुके थे। ड्राइविंग ही क्या, वो तो इसे पूरा इस्लामाबाद मरी भी घुमा चुके थे। अक्सा ने महसूस किया अर्श काफ़ी परेशान है। पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। अर्श ने खामोशी से गाड़ी कॉफ़ी शॉप की जानिब मोड़ दी। अर्श काफ़ी खामोश रहा। इसने भी कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। कुछ देर बाद वो इस्लामाबाद के सबसे बड़े बुक स्टोर पर मौजूद थे। इसने 2-3 किताबों के नाम अर्श को बताए और बाकी खुद ढूंढने लगी। अर्श रैक में रखी किताबें देख रहा था। एक किताब इसे मिल गई थी और वो आगे बढ़ता दूसरी किताब ढूंढने लगा। जब आवाज़ पर ठहर गया। ये बुक उठा देंगे? अर्श के कदम जम गए। अर्श, मैं आपको अपने अल्लाह के अमान में देती हूँ। वो तेज़ी से पलटा। सियाह बाई में ऊपर से नीचे तक ढकी, आज भी अपनी मासूम आंखों से मुकाबिल का दिल धड़का देने वाली। हाँ, वही थी। वही जिसको देखने के लिए वो बेकरार था। अर्श को बुलाने आई अक्सा पीछे ही रुक गई। अर्श के चेहरे पर छाए रंग मुख्तलिफ थे। सवेरा। सवेरा की आंखों में पहले हैरत, फिर मुस्कुराहट उभरी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो दोबारा कभी इसका सामना अर्श से होगा। वो भारी कदमों के साथ चलता इसके सामने आया। पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। कैसी हैं? आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाते इस्तफसार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सवेरा को न जाने क्यों रोना आ रहा था। मैं भी ठीक हूँ। सवेरा ने सर हिलाया। आप यहाँ ठीक से रह रहे हैं ना? आहिस्ता से पूछा। बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन इसने सिर्फ सर हिला दिया। न जाने आज सब अल्फाज रूठ क्यों गए थे। मैं चलती हूँ। पलट गई। खड़ा रहना मुहाल हो गया था। पलटते इसकी आंखों से आंसू बहकर नकाब में जज्ब हुए। अर्श की आंखें भी बरसने को तैयार थीं। वो इसे रोकना चाहता था। वो चाहता था सवेरा कुछ देर इसके सामने रहे, लेकिन वो चली गई। अर्श। अक्सा ने आगे बढ़कर अर्श को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो फ़ौरन संभला। अगर किस्मत ने आपको मौका दिया है तो इसे गंवाइए मत। इसने अक्सा को देखा, फिर काउंटर पर खड़े नईम साहब को। वो कदम कदम चलता उनके पास आया। हाल अहवाल के बाद अर्श ने उनसे एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर ले लिया। घर लाजमी आना, अम्मा बहुत याद करती हैं। बहुत जल्द आऊँगा। घर जाने से पहले नईम साहब से तफसील से बात करना चाहता था। इसका पहले नईम साहब से बाहर मिलने का इरादा था। अबाया उतार कर वो बेड पर लेट गई। आंखों के नीचे हल्के बहुत गहरे हो रहे थे। अर्श को देखकर वो खुश भी हुई थी लेकिन दिल में दर्द सा भी उठने लगा था। दादी उसके सिरहाने आकर बैठ गई। मेरी बेटी की आंखों में आंसू क्यों हैं? वो इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। दादी, आज मैं अर्श से मिली। हाँ, नईम ने बताया वो यहाँ रहता है। ठीक है ना वो? दादी पूछ रही थी। जी दादी, ठीक हैं। उसकी आंखें भारी हो रही थी। कुछ खाना है? नहीं दादी, भूख नहीं, मैं बस सोना चाहती हूँ। दादी कुछ देर इसको देखती रही, फिर नाम आँखों के साथ उठकर बाहर चली गई। अर्श सवेरा के डॉक्टर के सामने बैठा था। आप मुझसे कुछ भी मत छुपाएं, अर्श ने भारी दिल के साथ कहा। 20% उम्मीद है कि यह ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। सिर्फ 20%? अर्श ने ज़ोर से मुट्ठी बनाई और गहरा सांस लिया। आप क्या कहते हैं, क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ। नईम साहब को भी मैंने यही कहा है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ऑपरेशन में हमें 20% उम्मीद भी तो है कि वो कामयाब होगा, लेकिन सवेरा ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं, और जब तक वो तैयार नहीं होगी हम कोई भी ख़तरा नहीं ले सकते। अर्श ने कुछ सोचते डॉक्टर को देखा। आप ऑपरेशन की तारीख बताएं। डॉक्टर साहब ने चौंक कर इसे देखा, फिर इसे सारी तफसील बताने लगे। कमरे में गहरी खामोशी छा चुकी थी। अर्श ने अपनी और डॉक्टर की मुलाकात का बताकर सबको राज़ी तो कर लिया था ऑपरेशन के लिए, लेकिन इसके बाद अर्श के लबों से अदा हुए अल्फाज सबको हैरान कर गए थे। वो अपनी जगह से उठकर नईम साहब के घुटने पर हाथ रखता नीचे पंजों के बल बैठा। अम्मा के बाद मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिला है। मैं दिल से आप लोगों की कदर करता हूँ। चचा, मुझे खाली हाथ मत लौटाएं। मैं बहुत उम्मीदें लिए आपके पास आया हूँ। सवेरा ने आहिस्ता से आंखें खोली। कमरे में हल्की रोशनी थी। उठकर बैठते इसने चेहरे से बाल पीछे किया और दुपट्टा कंधों पर रखती बाहर आ गई।
सर बुरी तरह घूम रहा था। हाल रोशन था, खिड़कियों के पर्दे हटे होने के बायस बाहर से रोशनी अंदर आ रही थी। वो ड्राइंग रूम की तरफ मुतवज्जा हुई, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। वो कदम कदम चलती आगे आई। खुले बाल कमर पर बिखरे हुए थे। मैं सवेरा से निकाह करना चाहता हूँ। कदम चौखट पर ही थम गए। इसने फ़ौरन दीवार का सहारा लिया। मैं किसी हमदर्दी में आकर ये नहीं कह रहा, ना ही किसी पर तरस खा रहा हूँ। ये मेरी एक ख्वाहिश है। आज मेरा कोई बड़ा होता तो वो आपसे ही बात करता। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं खुद ही आपसे बात करने आ गया। कैसी बातें कर रहे हो बच्चे, बेटे हो तुम हमारे, दादी ने तड़प कर कहा। मैं सवेरा से पूछे बगैर कोई जवाब नहीं दे सकता। इसका पहले भी नईम साहब की नज़र पीछे खड़ी सवेरा पर गई, जिसका रंग उड़ चुका था। उनके अल्फाज दम तोड़ गए। सवेरा। वो घबरा कर खड़े हुए। अर्श ने चौंक कर गर्दन मोड़ी और अगले ही लम्हे रुख वापस मोड़ लिया। वो बिना नकाब के थी। इस पर लाजिम था कि वो अपनी नज़रें मोड़ ले। अब्बा मैं इनकार करती हूँ, मैं इनकार करती हूँ इस रिश्ते से, वो रोते हुए चीखे। अर्श ने आंखें मींच लीं। सवेरा, बच्चे पुरसकून हो जाओ। सिदरा ने घबरा कर इसे अपने साथ लगाया। वो रोते हुए कमरे में चली गई। चचा मुझे एक बार सवेरा से बात करनी है, बस एक बार। अगर वो इनकार कर देंगी तो मैं दोबारा कभी ये बात नहीं करूँगा। नईम ने दादी को देखा, जिन्होंने इस बात में सर हिलाकर इजाज़त दी थी। सिदरा कमरे में सवेरा के पास गई, जहाँ वो बेड पर सर थामे रो रही थी। चंदा एक बार अर्श से बात कर लो, बस एक बार। उनका लहजा इल्तिजाइया था। अम्मी मुझे कोई बात नहीं करनी, इन्हें कहीं चले जाएं मेरे कहने पर, बस एक बार। सवेरा ने माँ को देखा। वो इनकार करने लगी थी लेकिन रुक गई। माँ बाप दोनों इसकी बीमारी का सुनकर निढाल हो गए थे। वो बहुत तकलीफ़ में थे। वो इन्हें मज़ीद दर्द नहीं देना चाहती थी। सवेरा ने हार मान ली। वो दुपट्टा लपेटती खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आसमान पर काली घटाएं छा रही थीं। कुछ देर बाद अर्श कमरे में दाखिल हुआ। बिना कोई और बात किए इसने सीधा सवाल किया, आप क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहती? सवेरा ने रुख मोड़ा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। आप मुझे बताएं, आपने मुझसे शादी क्यों करनी है? ये बात आपने सोच भी कैसे ली? सुर्ख आंखें उठाकर इसे देखा। वो आहिस्ता से चलता इसके करीब आया। क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। अर्श की गंभीर आवाज़ में कहे अल्फाज सवेरा को दंग कर गए। वो 2 कदम पीछे हुई। दिमाग में टीसे सी उठ रही थी। एक मरती हुई लड़की के साथ आप क्या जिएंगे? आंसुओं से रुंधे गले से बमुश्किल आवाज़ निकली थी। अर्श ने तड़प कर इसे देखा। आज तो ये कह दिया है, आइंदा मत कहना। यकीन का चिराग थमाने वाली मायूसी की बातें करती अच्छी नहीं लगती। खुदा के लिए अर्श, मुझे अजियत मत दें, बेबसी से सिसकते हुए बोली। आप मुझ पर रहम करें सवेरा, मुझे इस अजियत से निकाल दें। मुझे ज़िंदगी गुजारनी नहीं है बल्कि ज़िंदगी जीनी है। इल्तिजा की गई। मैं थक गया हूँ। मेरी खुशी आप हैं, मेरा इनाम आप हैं। आपके लफ्ज़ों ने मुझे जीना सिखाया है। आपकी दुआओं ने मुझे कामयाब बनाया। सवेरा, आपने कहा था सब ठीक हो जाएगा। ठीक कहा था, सब ठीक हो गया। लेकिन बस आपकी कमी है। मैं कोई हमदर्दी नहीं कर रहा, मैं बस अपनी ज़िंदगी मांग रहा हूँ। सवेरा रुख मोड़ गई। इसका दुपट्टा भीग रहा था। अर्श, खुद के साथ जुल्म मत करें। मेरा साथ आपको कुछ भी नहीं दे सकता। मेरी सांसें बहुत थोड़ी हैं। मैं 3 लोगों से बिछड़ने के खौफ से हर रोज़ मरती हूँ। आपसे बिछड़ना मेरे लिए अजियतनाक मौत है। ये दिल आपके बगैर जीना सीख गया है। अब भी संभल जाएगा। आप चले जाएं, खुदा के लिए चले जाएं। इसका वजूद लरजने लगा था। आंसुओं में तेज़ी आ गई। मेरा दिल नहीं संभलेगा। ये दिल तो आपसे दूरी पर हर लम्हा तड़पा है। आपने मुझे हर मुश्किल में संभाला है। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लें। मैं जीना चाहता हूँ, मुझे आपके साथ जीना है। मेरा हाथ थाम लें। आप मेरी रोशनी हैं, वो रोशनी जिसने मेरी तारीक राहों को रोशन किया है। आप वो रोशनी हैं जिसने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया, इस पर यकीन करना सिखाया। आपने मुझे बताया कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कभी हारता नहीं है। सवेरा ने नज़रें उठाकर अर्श को देखा, जिसका वजूद सरापा इल्तिजा बना हुआ था। एक बार मुझ पर भरोसा कर लें, मेरा साथ कबूल कर लें। करेंगी ना मेरा साथ कबूल? अर्श के पूछने पर चंद लम्हे इसे देखती रही। आंखों के आगे माँ बाप, दादी, सबका चेहरा आने लगा। सबकी उम्मीद भरी नज़रें सामने आने लगी। इसने अर्श की उम्मीद भरी आंखों में देखते इस बात में सर हिलाया। इसका जवाब मिलते ही अर्श ने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर आंखों को दबाया और फिर बिना इसे देखे कमरे से निकल गया। सवेरा ने अपना हाथ गिरा दिया। नकाब चेहरे से हट चुका था। इसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। नईम साहब के घर में खुशियों की फ़ज़ा छा गई। वो उदास थे, लेकिन अर्श ने इन्हें यकीन दिलाया था कि सवेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। निकाह की तकरीब में चंद करीबी लोग ही शामिल थे। इसकी तबीयत के ख्याल से शोर शराबे से परहेज़ किया गया था। वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर बाहर आई तो सिदरा दादी के साथ लाउंज में कपड़ों का ढेर लगाए बैठी थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर खाला भी वहाँ मौजूद थी। अम्मी, ये इतना सामान किसका है?
हैरत से देखती उनके पास सोफे पर बैठी इसके मामूजात घर को सजा गए थे। सबका रात को ढोलक का इरादा था। लो भला, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। दादी की बात पर इसने मुंह फुलाया। ये सामान तुम्हारा है, यह आपने कब लिया? सामने फैले जोड़ों को देखने लगी। जब तू कॉलेज में थी तब से ही तेरी माँ ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। सवेरा की आंखें नम हो गईं। वो उठकर सिदरा के गले लग गई। अम्मी, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। खुद तो वो रोई ही, साथ दादी और माँ को भी रुला दिया। अर्श बड़ा प्यारा बच्चा है। मेरे दिल में बहुत दफ़ा इसका ख्याल आया था, लेकिन आफरीन की वजह से हमेशा मैंने अपनी ख्वाहिश को दबा दिया। लेकिन देखो, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। सिदरा ने आंसू साफ करते हुए कहा। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ। सवेरा ने उठकर दरवाज़ा खोला। अजनबी चेहरे सामने वाजे हुए। उनके हाथों में सामान था। किससे मिलना है आपको? सवेरा के सवाल पर अक्सा मुस्कुराई। हमें अर्श की सवेरा से मिलना है। सवेरा के चेहरे का रंग बदला। पीछे ही गाड़ी में मौजूद अर्श फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। ओए होए, उपटन से पहली लड़की पर रूप आ रहा है, अक्सा ने शरारत से कहा। वो अक्सा और इसकी वालदा को लाउंज में ले आई। हम अर्श की तरफ से माइयों का जोड़ा लेकर आई हैं। सबसे मिलने के बाद उन्होंने सामान सिदरा के हवाले किया। अर्श के आते ही सवेरा अपने कमरे में चली गई थी। अक्सा मेरी बहुत अच्छी दोस्त और कोलीग है, अर्श ने अक्सा का तारुफ करवाया। थोड़ी देर बैठने के बाद उन्होंने वापसी की इजाज़त मांगी। रात को सवेरा के मामू ने उपटन की रस्म के साथ ढोलक रखी है। हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी शिरकत करें। सिदरा ने इन्हें दावत दी। आज तो हमारे लड़के की भी रस्म है। अक्सा ने शरारती नज़रों से अर्श को देखा, जो अचानक मिलने वाली खबर पर चौंका था। आंटी, मैं सोच रही थी क्यों ना दोनों की रस्म इकट्ठी कर दी जाए। अर्श ने नफ़ी में सर हिलाया। अक्सा पूरी तरह अर्श को नज़रअंदाज कर गई थी। यह तो अच्छी बात है, लेकिन सवेरा? आंटी, सवेरा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, अक्सा ने यकीन दिलाया। वापसी पर अर्श के चेहरे को देखते अक्सा को हंसी आ रही थी। यकीनन वो इससे नाराज़ था। अक्सा की वालदा को घर छोड़कर इन दोनों को फर्नीचर और घर का कुछ सामान लेने जाना था। कल का पूरा दिन भी उसका बाजार में गुजरा था। इसने कुछ दिनों के लिए अक्सा की मदद मांगी थी, जिस पर वो खुशी खुशी तैयार हो गई। शॉपिंग तो मुकम्मल हो गई थी, बस अब कुछ किचन का सामान और फर्नीचर रह गया था। मिस्टर सड़ियल, मुझे पता है ये ऊपर ऊपर से नाराज़गी दिखा रहे हो, दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। अक्सा के छेड़ने पर वो इसे घूर कर रह गया। हाल और कमरे का सामान लेकर अक्सा ने इसे बाकी सामान लेने से मना कर दिया। अर्श, बस इतना काफ़ी है। बाकी सवेरा के साथ मिलकर इसकी पसंद से घर को सजाना, अब आगे इसकी जिम्मेदारी है। 7 बजे तक अक्सा के साथ मिलकर वो घर सजा चुका था। अक्सा ने मुलाजमा का इंतज़ाम भी कर दिया था। लाउंज में नज़र डालकर वो अर्श के कमरे में जाने लगी थी, तभी फौजिया चाय के मग पकड़े इसके पास आई। ये लें बाजी। वो इससे ट्रे लेकर कमरे में आ गई। बेडशीट और पर्दे तब्दील हो चुके थे। कमरे में मोतिये के फूलों की महक फैल रही थी। अक्सा ने बालकनी में देखा, मुख्तलिफ फूलों के गमले पड़े थे। अर्श ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। सवेरा को फूल बहुत पसंद है, ख़ासकर मोतिये के फूल। अक्सा मुस्कुरा दी। अलमारी में कुछ सामान रख रहा था, अलबत्ता चेहरे पर मुस्तरब सा एहसास नुमाया था। सवेरा बहुत खुशकिस्मत है। इसकी बात पर अर्श इसकी जानी पलटा। खुशकिस्मत तो मैं हूँ जिसे सवेरा से नवाजा जा रहा है। वो मुस्कुराई। अर्श, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम कुछ परेशान हो, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं। अर्श ने आगे बढ़कर अक्सा के हाथ में मौजूद ट्रे से अपना मग उठा लिया। कहते हो तो मान लेती हूँ। अच्छा, मैं कहने आई थी कि मैं घर जा रही हूँ, जब तैयार हो जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना। वो पलट गई, लेकिन इससे पहले वो कमरे से बाहर निकलती। अर्श ने इसे आवाज़ देकर रोका। इसकी आवाज़ में कर्ब था, जबकि चेहरे पर बेबसी। क्या बात है? मैं आज ही निकाह करना चाहता हूँ। अर्श की संजीदगी और आवाज़ की लर्जिश पर वो ठिठकी। मेरा दिल बहुत बेचैन है, अजीब सा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। वो इसके पास आई। सब ठीक है, मेरी सुबह ही सवेरा से मुलाकात हुई थी, वो ठीक है। अर्श बेचैन सा खिड़की के पास खड़ा हो गया। पता नहीं मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा। परेशान मत हो, अंकल से बात कर लो कि अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, आज ही निकाह कर लो। इसने नज़रें मोड़कर अक्सा को देखा। वो फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाई खड़ी थी। दोनों हाथ बेसन पर सख्ती से जमाए वो गहरे सांस ले रही थी। पेशानी अर्कालूद हो रही थी। नाक से बहता खून अब कहीं जाकर रुका था। इसने हथेलियों में पानी लेकर चेहरे पर डाला। अच्छे से मुंह धोने के बाद वो बाहर आ गई। कमरे में गेंदे के फूलों से सजावट की गई थी। सवेरा दीवार का सहारा लेती बेड तक आई और आहिस्ता से बैठ गई। जिस्म बुखार से तप रहा था। टावल से मुंह साफ करके वो कुछ देर बैठी रही, फिर उठकर आईने के सामने आ गई। बाहर से ढोलक की आवाज़ आ रही थी। मगरिब के बाद ही इसके कज़न और मामू आ गए थे। उसने आईने में अपने अक्स को देखा।
पीले रंग का टखनों तक आता फ्राक पहने मुरझाई हुई सी लग रही थी। वो कुर्सी पर बैठकर अपने बालों को सुलझाने लगी, जो कि हल्के हल्के नम थे। बाल बनाकर इसने सब्ज चूड़ियाँ कलाइयों में डाली। खिड़की पर लगे पर्दे हवा से झूल रहे थे। आकाश पर चमकते महताब की चांदनी कुछ और बढ़ने लगी। इसने गेंदे के फूल चुटिया में लगाकर दुपट्टा सर पर जमाया और खड़े होकर पाँव में पीले खुस्से पहने वो तैयार थी। इसने नज़रें उठाकर आईने में नजर आते अपने मुकम्मल अक्स को देखा। लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी थी। तभी दरवाज़ा तेज़ी से खोलती लड़कियां अक्सा के हमरा कमरे में दाखिल हुईं। सवेरा पलटी और सब जहां थे वहीं थम गए। सबकी आवाज़ों को ब्रेक लग गए। इन सबको खामोश देखकर उसको परेशानी हुई। तुम सब चुप क्यों हो गए और ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक नहीं लग रही, ये फूल उतार दूँ? इसने बालों पर लगे फूल उतारने के लिए हाथ उठाया ही था कि सब यक ज़ुबान बोले नहीं। इसने डर कर हाथ हवा में ही रोक दिया। अक्सा ने आगे बढ़कर ज़ोर से सवेरा को गले लगाया। तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि तुम्हें देखते हम सब अपने हवास खो बैठे थे। सब हंसने लगे। अक्सा बिल्कुल ठीक कह रही है। सवेरा की कज़न फातिमा ने मुस्कुरा कर इसका दुपट्टा ठीक किया। सवेरा के चेहरे पर सुर्खी छलकने लगी। सब लड़कियों के संग आती सवेरा इतनी हसीन लग रही थी कि दादी और सिदरा ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। सिदरा पल्लू से आंखें साफ करती एक तरफ हो गईं। वो नहीं चाहती थी कि सवेरा इनके आंसू देखे। मर्द हजरात नईम साहब के हमरा मेहमान खाने में बैठे हुए थे। इसे दादी के साथ सोफे पर बिठाया गया। दादी ने इसे अपने साथ लगाकर ढेरों दुआएं दी थी। अभी सब मिलकर बैठे ही थे कि सवेरा को घबराहट सी होने लगी। दिमाग की नसें फटती महसूस हो रही थी। बुखार तो इसे पहले ही था, लेकिन अब जिस्म से निकलती तपिश इसकी आंखें भारी कर रही थी। अक्सा उठकर सवेरा के पास आई और इसका हाथ पकड़ा। अगले ही लम्हे वो चौंक गई। सवेरा, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। बस हल्का सा ही है। सवेरा ने इसे आहिस्ता बोलने का इशारा किया। मैं आंटी से बात करती हूँ। उठने लगी थी कि इसने इसका बाजू पकड़ लिया। नहीं, सब परेशान हो जाएंगे। कुछ देर की तो बात है, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। सिदरा ने आगे बढ़कर इसका घूंघट निकाल दिया। सब खवातीन एक तरफ हो गईं। नईम साहब और सवेरा के मामू मौलवी साहब के साथ सवेरा के पास आए। मेहमान खाने का दरवाज़ा खुला हुआ था। अक्सा के बिल्कुल सामने सोफे पर सफ़ेद शलवार कमीज़ पर ऑफ वाइट वास्कट ज़ेब तन किए अर्श अपनी भरपूर वजाहत के लिए दोस्तों के संग बैठा हुआ था। पूरे घर में सिर्फ मौलवी साहब की आवाज़ गूंज रही थी। वो सवेरा से पूछ रहे थे, सवेरा नईम वल्द नईम खालिद, आपको 30,000 हक महर के एवज़ अर्श खलील से निकाह कबूल है? मौलवी साहब के खामोश होते ही चारों तरफ सकूत छा गया। अर्श का पोर पोर सवेरा का जवाब सुनने के लिए मुंतज़िर था। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। कबूल है। भीगी लरसती आवाज़ जो ही अर्श की समात से टकराई, इसने ज़ोर से आंखें बंद कर लीं। पलकें लरज़ रही थीं। मुबारक हो अर्श भाई। ज़रा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंका। आंखों में नमी वाज़े हो रही थी। मौलवी साहब अब अर्श के साथ बैठ रहे थे और फिर वो दोनों एक दूसरे के नाम लिख दिए गए। सदियों पहले आसमानों पर जुड़े नाम बिल आखिर ज़मीन पर भी यकजा हो ही गए। मुबारकबाद का सिलसिला ख़त्म होते ही नईम साहब ने खाना लगवा दिया। क्या खाओगी? अक्सा ने सवेरा से पूछा। कुछ भी खाने का दिल नहीं है। चलो कुछ देर बाद खा लेना। सवेरा ने मुस्कुराकर इसे देखा। आप बहुत अच्छी हैं। अक्सा हंस पड़ी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें मैं अच्छी लगी हूँ। मुस्तकबिल में हम बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। वो किसी काम से उठकर वहाँ से गई तो इसने दादी के कंधे पर सर रख दिया और सबको देखने लगी। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। इसने किचन के सामने खड़े नईम और सिदरा को देखा। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर अनोखी चमक थी। इसकी आंखों से आंसुओं की बारीक लड़ी कनपटी भिगोती बालों में जज्ब हो रही थी। उसने हाथ उठाकर आंसू साफ किए। सर का दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। खाने से फारिग होते ही अर्श के दोस्त रवाना हो गए। अर्श को सवेरा के साथ बिठाने के लिए सोफ़ा ठीक किया गया। उसके कानों में सीटी जैसी आवाज़ गूंजने लगी। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा था। कौन इसका दुपट्टा ठीक कर रहा है? इसकी कज़न इससे क्या कह रही है? सब इसके सामने खड़े हो गए थे। शायद वो अर्श का रास्ता रोक कर इसको जेब हल्की करने का कह रहे थे। सवेरा का जिस्म कांपने लगा था। अर्श के लबों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट का राज था। उसने लिफाफा निकाल कर फातिमा की जानिब बढ़ाया। सब ने रास्ता छोड़ दिया। सब रुकावटें दूर हो चुकी थी, लेकिन अर्श में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सवेरा को एक नज़र भी देख लेता। सिदरा ने इसे बैठने का कहा था। वो थोड़े फासले पर सवेरा के साथ बैठ गया। एक अनोखी सी महक दिल में उतरती महसूस हुई। सिदरा ने आगे बढ़कर अर्श को मिठाई खिलाई। नईम साहब अर्श के साथ बाएं जानी बैठे थे। सवेरा को अपने दिमाग की नस फटती महसूस हो रही थी। इसका पूरा वजूद पसीने से तर हो गया।
बंद होते कानों के साथ इसने सर उठाया। अक्सा की नज़र सबसे पहले इस पर पड़ी थी। सवेरा ने दोनों हाथ उठाकर सर पकड़ा। अक्सा भागकर इसकी जानिब आई। इसके चिल्लाने पर सब इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। अर्श ने चौंक कर सवेरा को देखा। वो ज़ोर से सर को पकड़े दर्द से तड़प रही थी। इर्द गिर्द सब गायब हो गया। कुछ सामने था तो पीले जोड़े में दर्द से तड़पता सवेरा का वजूद था। वो झटके से इसकी तरफ घूमा। सवेरा। सवेरा ने हाथ हटाए। आंसू से भीगी आंखें अर्श की आंखों से टकराईं। अक्सा ने पानी का गिलास इसके लबों से लगाया। नईम साहब फ़ोन पर डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहे थे। सब मुस्तरब से इसके गिर्द खड़े हो गए। इसकी नज़रें अर्श पर थी। तभी अर्श को अपने हाथ पर दहकता लम्स महसूस हुआ। इसने चौंक कर अपना हाथ देखा। सवेरा ने आहिस्ता से अर्श का हाथ थामा था। अर्श ने सर उठाया। वो नम आंखें लिए इसे देख रही थी। इसने मजबूती से इसका हाथ अपने दोनों हाथों में दबाया और फिर सवेरा ने भारी होती आंखें मौन लीं। वह अक्सा के कंधों पर झूल गई। सवेरा। अक्सा इसका चेहरा थपकने लगी। आंखें खोलो सवेरा। सिदरा ने रोते से झंझोड़ा। अर्श की साकित आंखों से चंद आंसू लुढ़क कर दाढ़ी में जज्ब हुआ। इसने अपने हाथों में मौजूद सवेरा के हाथ को देखा। सब्ज चूड़ियाँ उसकी कलाई में बहुत जच रही थीं। सुबह की सफ़ेदी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। कमरे में मशीनों की आवाज़ के अलावा गहरा सकूत था। कमरे की सफ़ेद दीवारें सल्ट पड़ती जा रही थी। आहिस्ता से दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ। अर्श फजर की नमाज़ पढ़कर लौटा था। वो कदम कदम चलता बेड के पास आया। ऑक्सीजन मास्क के नीचे धीमी सांसें लेता वजूद इसकी रूह का साथी था। वो साथी जो कुछ घंटों पहले अपना आप इसके नाम कर चुका था। वो साथी जिसके होने से अर्श खलील का होना था। इसकी खुशी, इसका सुकून था। अर्श ने सवेरा के सल्ट पड़ते चेहरे को देखा। इसकी कलाइयों में सब्ज चूड़ियाँ अब भी सज रही थीं। दाएं हाथ पर लगी ड्रिप कतरा कतरा इसके रगों में उतर रही थी। वो आहिस्ता से बेड के किनारे बैठ गया। इसने सबको घर भेज दिया था जब वो सवेरा को हॉस्पिटल लाए थे। तब इसकी हालत बहुत ख़राब थी। अभी कोई खातिर खा उम्मीद नहीं थी। एक आखिरी उम्मीद ऑपरेशन ही था। बस इंतज़ार था तो सवेरा के होश में आने का। अर्श दाएं बाएं बेड के किनारों को मजबूती से पकड़े सफ़ेद मार्बल के फर्श को घूर रहा था। वास्कट रात को ही उतार कर कहीं रख दी थी। सफ़ेद कमीज़ के आस्तीन कोहनियों तक मोड़ रखे थे। आंखों में सुर्खी छलक रही थी। उसने गीली सांस खींचते गर्दन मोड़ कर इसके हाथ को देखा। किनौला की वजह से हाथ में सूजन आ गई थी। अर्श ने आहिस्ता से सवेरा का हाथ अपने हाथों में लिया। झुककर इसके हाथ पर अपने लब रखने लगा था कि ठहर गया। नज़रें उठाकर इसके चेहरे को देखा। सवेरा के चेहरे के नूर और मासूमियत ने अर्श के दिल में इसकी मोहब्बत को बढ़ा दिया था। वो सीधा हो गया। मुझ पर रहम करो सवेरा। आपको इस हालत में नहीं देखा जा रहा। अभी तो आपसे बहुत कुछ कहना है। बहुत सी बातों का इतराफ़ करना है। आपसे अपने दिल की बात कहनी है। आपका हाथ थाम कर ज़िंदगी को जीना है। अभी तो हम मिले हैं। इस मिलन को खुलकर जीने तो दें। अभी तो मैंने आपको आंख भर कर देखा भी नहीं। आपकी इजाज़त के बगैर कैसे अपनी मोहब्बत की मोहर लगाऊं? आपके लबों से सुनना चाहता हूं कि सवेरा पर सिर्फ अर्श का हक़ है। आपसे जानना चाहता हूं कि आप दिलो जान से सिर्फ मेरी हैं। वो सवेरा के हाथ को आंखों से लगाए भीगे लहजे में बोल रहा था। ज़ब्त था जो टूट रहा था। मुझे यूँ तन्हा मत करें। आँख से गिरते आंसू सवेरा के हाथ को नम कर रहे थे। सवेरा सिर्फ अर्श की है। ऑक्सीजन मास्क के नीचे से अटकती आवाज़ उभरी और साथ ही हाथ की गिरफ्त मजबूत हुई। अर्श ने झटके से उसे देखा। वो आहिस्ता सी भारे पलके खोलने की कोशिश कर रही थी। सवेरा। वो मुस्कुराया। इसने आंखों के दर वाह किए। तेज़ रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं। डॉक्टर इसका मुआयना करके अर्श को तसल्ली देकर गए थे कि सवेरा पहले से बेहतर है। वो दरवाज़ा बंद करके पलटा तो वो उठकर बैठ रही थी। इसने इसके पीछे तकिया ठीक किया। डॉक्टर ने आपको कुछ खिलाने के लिए कहा है। बताएं क्या खाएंगी? सवेरा मध्यम सा मुस्कुराई। कुछ भी नहीं, बस पानी पिला दें। अर्श ने फ़ौरन पानी का गिलास उसके लबों से लगाया और कुछ उसने नफ़ी में सर हिलाया। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। अर्श उसके पास ही खड़ा था। बैठ जाएं। सवेरा ने इसे बैठने का कहा तो बेड के किनारे उसकी जानिब रुख करके बैठ गया। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? सबको रात को ही घर भेज दिया था। आप क्यों यहाँ ठहर गए? बिला वजह परेशान किया खुद को। अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। सवेरा हंस दी। चेहरा मुरझाया हुआ था। अर्श ने उसका हाथ पकड़ा। यूं ही हंसती रहा करें। मुझे माफ़ कर दें अर्श। सवेरा की आवाज़ भीग गई। मैंने आपको कहा था मेरा साथ। इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती अर्श ने अंगश्ते शहादत उसके लबों पर रख दी। आपके साथ से मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स बन गया हूँ। वो शख्स जिसे अल्लाह ने अपनी ख़ास और बेहतरीन बंदी से नवाजा है। सवेरा की आंख से गिरने वाले मोती अर्श ने बड़े प्यार से चुने थे। अर्श के लम्स पर सवेरा ने अपनी आंखें मूंद लीं। इसका दिल रब के आगे सजदा रेज होने लगा कि इसे ऐसे अजीम शख्स से नवाजा गया था जिसके हर अमल, हर कौल में एहतियात और इज़्ज़त थी।
अर्श ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मेरे दिल की हालत का आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकती। मेरे दिल में झांक कर देखें, जान जाएंगी अपना मकाम। आपकी हया, आपकी पाकीज़गी से मोहब्बत की थी, ये जाने बगैर कि एक दिन आपके इश्क में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो आपका नाम भी लबों से अदा करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब आपसे बुक स्टोर पर मुलाकात हुई तो फिर ये राज जो अपने आप से भी छुपाए हुए था, अपने अल्लाह के सामने रख दिया कि अल्लाह, तेरा ही बंदा अर्श तेरी ख़ास बंदी सवेरा से मोहब्बत कर बैठा है और तेरी रज़ा से सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारना चाहता है। अर्श ने अपनी पेशानी इसके पेशानी से जोड़ी। इसका चेहरा हनूज़ अर्श के हाथों के प्याले में था और आंखें बंद थीं, जबकि रुखसार भीग रहे थे। मैं सोचता था मैं कैसे बताऊं मासूम बेखबर चेहरे को कि कोई किस कदर इसे चाहता है। कैसे बताऊं मेरे दिल की ठंडक है, इसके बगैर कोई बहार नहीं लगती। कोई मौसम दिल को भाता नहीं, दिल को तो सिर्फ इसकी तमन्ना है। अर्श ने चेहरा पीछे किया। उसने आहिस्ता से भीगी पलकें उठाईं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो अपना दिल इसके सामने खोल रहा था। आज मुझे हर तकलीफ़, हर दर्द का मरहम मिल गया। मैं पूरी ज़िंदगी भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूं, तब भी इसकी नेमतों और नवाजिशों का हक अदा नहीं कर सकता। अम्मा कहती थी अल्लाह सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करता है। आज मुझे यकीन हो गया, आपने सही कहा था। कोई भी आजमाइश बर्दाश्त से बढ़कर नहीं होती। आजमाइश को सब्र की भट्टी में जलाकर राख कर देने से इनाम वजूद में आते हैं। आप मेरा इनाम है, मेरा मरहम है। सवेरा की आंसुओं में तेज़ी आ गई। वो झटके से इसके सीने से लग गई। ऑपरेशन के लिए मान जाएं। अर्श ने मजबूती से इसके गिर्द बाजू लपेट लिया। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती, वो सिसकते हुए बोली। मैं आपको दर्द में नहीं देख सकता। अगर ये दर्द बर्दाश्त करके मुझे आपके साथ कुछ दिन गुजारने की मोहलत मिलती है तो मैं खुशी से सब दर्द बर्दाश्त कर लूँगी। ऑपरेशन कामयाब होने की उम्मीद है। वो आहिस्ता से इससे अलग हुई। आंखें भारी हो रही थी। शायद दवाई असर करने लगी थी। 20% कामयाबी के साथ नाकामी भी तो है। अर्श ने इसके दोनों हाथ थामे। नाकामी को भूल जाएं, सिर्फ 20% को याद रखें। मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है। ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, इसी में कामयाबी हमारी दुआओं के ज़रिए होगी। अर्श ने इसके आंसू साफ़ किए। सवेरा ने सर हिलाया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसने बोझल होती नज़रें उठाईं। अर्श मुंतज़िर था। मुझे 1 हफ़्ते का वक्त चाहिए। अर्श ने इस बात में सर हिला दिया। इसने आहिस्ता से इसका सर सिरहाने पर रखा। दोपहर तक सवेरा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। नईम साहब इसे घर ले आए थे। अर्श ने रात को सवेरा को अपने साथ लेकर जाना था, इसलिए वापस घर चला गया। सिदरा सवेरा को सूप पिला रही थी, तभी सवेरा का फ़ोन बजने लगा। इसने रुख मोड़ कर स्क्रीन को देखा जो बंद हो चुकी थी, लेकिन साथ ही मैसेज से स्क्रीन दोबारा रोशन हो गई। कुछ और चाहिए? सिदरा के पूछने पर इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं दवाई लेकर आती हूँ, तब तक उठकर फ्रेश हो जाओ, फिर फातिमा आकर तैयार कर देगी। उन्होंने झुक कर इसके सर पर प्यार किया। आप रात से सोई नहीं है ना? सवेरा ने माँ का हाथ पकड़कर लबों से लगाया। औलाद तकलीफ़ में हो तो माँ को सुकून कैसे आ सकता है? उनकी आवाज़ भीग गई। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप बस रोया ना करें। इसने माँ के आंसू साफ़ किए। अच्छा नहीं रोती, उठकर तैयार हो जाओ, मैं ज़रा किचन देख लूँ, अर्श आने वाला होगा। वो चली गई। सवेरा के फ़ोन पर दोबारा अर्श की कॉल आने लगी। कैसी हैं? इसने फ़ौरन पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। आपको घर इसलिए भेजा था ताकि आराम कर लें। आप अब मोबाइल को बंद करके कुछ देर सो जाएं। हर घंटे बाद इसे फ़ोन कर रहा था। ऐसे कैसे सो जाऊं? मैं तो तैयार भी हो गया। आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं आ रहा हूं। इतनी जल्दी? इसने फ़ौरन कहा। आप नहीं चाहती कि मैं आऊँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो फ़ौरन गड़बड़ा कर बोली। मतलब आप चाहती हैं कि मैं जल्दी से आ जाऊँ? मैं कुछ भी नहीं चाहती अर्श। इसने सर पकड़ लिया। मुझे भी नहीं चाहती। इसकी आवाज़ में शरारत थी। उसके अचानक के सवाल पर सवेरा ने फ़ौरन कह दिया, चाहती हूँ। फिर ठहरी, नहीं। अर्श वो झुंझला गई। चेहरा सुर्ख हो गया था, जबकि अर्श का कहकहा गूंजा। मैं भी आपको बहुत चाहता हूँ। जल्दी से तैयार हो जाए, मैं आ रहा हूँ। इसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। लबों पे मुस्कुराहट फैल गई। खाने से फारिग होकर चाय का दौर चल रहा था। अर्श के साथ अक्सा और इसकी वालदा आई थी। अर्श ने मग लबों से लगाया ही था कि नज़र सामने खुलते दरवाजे पर पड़ी। फिर कमरे से चांदी रंग की हिल में मुक़य्यद 2 कदम बाहर निकले। अर्श की नज़रें आहिस्ता से ऊपर की जानिब उठ रही थीं। लाल चूड़ीदार पाजामा, साथ में लाल कलियों वाला फ़राक। फिर अर्श की नज़रों ने वो मंज़र देखा जो इसके लिए हसीन तरीन मंज़र था। हिजाब के हाले में चमकता सवेरा का मासूम चेहरा। इसने मग नीचे किया। सवेरा ने मुस्कुराते सर हिलाकर इसे सलाम किया। जवाबन इसने सर को खम दिया। वो किचन में सिदरा के पास चली गई। फातिमा इसका बैग बाहर ले आई थी। रुखसती के वक्त सबकी आंखें नम हो गईं। सवेरा नईम साहब के सीने से लगते ही बुरी तरह रो दी।
अर्श बैग उठाता बाहर निकल गया। पूरा रास्ता सवेरा की आंखें नम रही थीं। घर पहुंचते ही अक्सा ने इन दोनों का बहुत खूबसूरत इस्तकबाल किया था। कुछ देर बैठकर वो जाने के लिए उठ गई। अक्सा की वालदा ने आगे बढ़कर सवेरा को प्यार किया। अल्लाह चेहरे की ये रौनक हमेशा कायम रखे, हमेशा खुश रहो। अर्श दरवाज़ा बंद करके आया तो सवेरा सोफे पर बैठी अपनी हथेलियाँ देख रही थी। सवेरा, इसने चौंक कर सर उठाया। जी, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, आप दरवाज़ा बंद करके आराम करने कमरे में चली जाएं, चाबी है मेरे पास। सवेरा ने सर हिला दिया। इसकी जाते ही वो भी नमाज के लिए उठ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही फूलों की महक ने इसका इस्तकबाल किया था। कमरा रोशन था। इसने पूरे कमरे में नज़र डाली। फर्नीचर के साथ साथ कमरे की डेकोरेशन भी बहुत खूबसूरत थी। सबसे पहले पाँव जूतों से आज़ाद करके वो आईने के सामने आई। एक से बढ़कर एक चीज़ वहाँ रखी गई थी। सवेरा मुस्कुरा दी। अर्श ने इसे बताया था कि इसके लिए सब चीज़ें उसने अक्सा की मदद से ली हैं। नमाज पढ़कर उसने जाए नमाज वापस अपनी जगह पर रखी और हिजाब खोलकर दुपट्टा कंधों पर जमाया। इसने आगे बढ़कर अलमारी का एक पट खोला और अलमारी में मौजूद चीज़ों को देखते ही इसकी आंखें फैल गईं। वहाँ इसके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया था। हर रंग का हिजाब तरतीब से लगाया गया था। हर रंग का अबाया मौजूद था। इसने दूसरा दरवाज़ा खोला। वहाँ इसके कपड़ों के साथ अर्श के कपड़े भी मौजूद थे। उसकी आंखें नम हो गईं। वह दरवाज़ा बंद करती अपने बाल ठीक करने आईने के सामने आ गई। वो बालों में ब्रश फेर ही रही थी कि अर्श कमरे में दाखिल हुआ। सवेरा ने दुपट्टा दुरुस्त किया। तबीयत कैसी है? मेज़ पर चाबी घड़ी उतार कर रखते इस्तफसार कर रहा था। ठीक हूँ, जवाब देती कमरे से बाहर निकल गई। अर्श ने गर्दन मोड़कर इसे जाते देखा। फिर मोबाइल पर आती कॉल उठाता बेड पर बैठ गया। फ़ोन पर बात कर रहा था जब सवेरा पानी का गिलास लिए इसके पास आई। इसने पानी का गिलास पकड़ते से शुक्रिया का दूसरी जानिब देखने लगा। इससे पहले कि वो मुड़ती, अर्श ने आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया। वो रुक गई। सुर्ख रेशमी दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पर आ गया था। इसने फ़ोन बंद करके एक तरफ रखा। बैठे। वो इसके सामने बैठ गई। इसका हाथ अब भी अर्श के हाथ में था। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। आप मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ ले चुके हैं। जेब से लिफाफा निकालते हाथ रुके। अर्श ने इसे गौर से देखा। वो कुछ नाराज़ नज़र आ रही थी। आप मुझसे नाराज़ हैं? सवेरा ने संजीदगी से इसे देखा, बल्कि घूरा था। हाय अल्लाह, शादी के पहले ही दिन मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है। वो हंस दिया। अर्श ने फ़ौरन मुस्कुराहट दबाई, अलबत्ता आंखों में शरारत तैर दी थी। क्या ज़रूरत थी इतना कुछ लेने की? सवेरा, बहुत अरसे बाद मुझे कोई मेरा अपना मिला है। अब्बा तो बचपन में ही साथ छोड़ गए थे और अम्मा को तो कुछ देने का मौका ही नहीं मिला। आपके लिए मुझसे जो हो सका मैं करूँगा और आप मुझे बिल्कुल नहीं रोकेंगी। हल्के से इसका नाक दबाकर वो खाकी लिफाफा खोलने लगा। इसने मोतिये के गजरे निकाल कर उसके आगे हथेली फैलाई। सवेरा की आंखों में मुस्कुराहट उतर आई। इसने नरमी से अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ा दिया। दोनों हाथों में गजरे पहनाकर अर्श ने उनकी महक को दिल में उतारा। वक्त ना किसी के लिए रुका है ना रुकेगा। ये एक हफ्ता भी पर लगाकर उठता ही चला जा रहा था। सवेरा लाउंज में आई ही थी कि मुलाजमा इसकी दवाई और पानी ले आई। अर्श का कॉलेज और शाम की क्लासेस शुरू हो चुकी थी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे फौजिया बाजी, और अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी से नवाजे, सुहाग सलामत रखे, बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब हों। सवेरा यासियत से मुस्कुरा दी। रात के खाने के दौरान अर्श इसकी खामोशी महसूस कर रहा था, लेकिन बोलने के लिए तो अर्श के पास भी अल्फाज नहीं थे। कल ऑपरेशन का वक्त दे दिया गया था। वो अपने सूप के प्याले में चम्मच चला रही थी जब अर्श ने मेज़ पर धरे इसके बाएं हाथ पर अपना हाथ रखा। मैंने इसे बहुत याद किया, लेकिन मैंने आपको मना किया था, आप कोई काम नहीं करेंगी। इसने बिरयानी की तरफ इशारा किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब तो फौजियाबाजी करते रहीं। आपने इन्हें भी अपनी तरह बना दिया है। सवेरा ने मुंह फुलाया। आप ऐसे बहुत क्यूट लगती हैं। कैसे? ऐसे नाक फुलाकर। अर्श ने इसकी नकल उतारी तो वह हंस दी। तभी अर्श के मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने स्क्रीन देखते ही फ़ौरन कॉल काट दी, लेकिन सवेरा डॉक्टर का नाम देख चुकी थी। इसने कोई तासुर नहीं दिया। खाना बहुत मज़े का था। अगर मुझे देर हो जाए तो आप सो जाइएगा। वो इसके सर पर प्यार करता कपड़े बदलने चला गया। ईशा की अजान फ़ज़ा में गूंजने लगी थी। किचन समेट कर सवेरा बाहर आई तो पूरा घर खामोशी के घेरे में था। उसका दिल वीरानियों की लपेट में आने लगा। जिस्म बेजान सा होता महसूस हो रहा था। वो भारी कदम उठाती कमरे में आ गई। बालकनी की खिड़की खुली हुई थी। इसने हवा से झूलते पौधों को देखा। मुझे फूल पौधों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब से मुझे इल्म हुआ कि आपको कुदरत से प्यार है, तब से मुझे इन सब से मोहब्बत हो गई है। इसने आहिस्ता से पत्तों को छुआ, फिर भीगे रुखसार लिए पलट गई। वज़ू करके इसने जाय नमाज बिछाई।
आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। स्याही में डूबे कमरे को चांद की चांदनी रोशन कर रही थी। खिड़की पर लगे पर्दे हवा से झूल रहे थे। आखिरी रकत पढ़कर इसने दुआ के लिए कांपते हाथ उठाए, आंखें बंद की तो अर्श का मोहब्बत लुटाता लहजा और अक्स सामने आ खड़ा हुआ। आंसुओं में तेज़ी आ गई। अल्लाह, लब बुरी तरह लरज रहे थे। मेरे प्यारे अल्लाह, ये ज़िंदगी आपकी अमानत है, मेरी हर सांस आपकी अमानत है। मैं आपके हर फैसले पर लब्बैक कहती हूँ और कहती रहूँगी। मैं हमेशा राज़ी रहूँगी। इसने सिसकी ली। आज मैं आपसे एक इल्तिजा करने आई हूँ। इसके हाथ थक गए थे। मैं आपसे ज़िंदगी मांगने आई हूँ। अल्लाह मुझे सांसें दे दें मेरे अल्लाह। सफ़ेद मार्बल के फर्श पर पेशानी टिकाए वो सिसक रहा था। अभी तो मैंने मोहब्बत को महसूस किया है, अभी तो अर्श को जीते देखा है। मुझे कुछ हो गया तो वो टूट जाएगा। सवेरा ने हाथों में चेहरा छुपा लिया। और मैं भी आपसे आज अपनी ज़िंदगी मांगता हूँ। मैं सवेरा की सांसें मांगता हूँ। दाढ़ी भीग चुकी थी, अभी तो मैंने अर्श को हंसते ही देखा है, अभी तो मैंने इसके संग जीना है। वो कहती है आप पर यकीन रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मुझे भी खाली हाथ ना लौटाइएगा, अल्लाह मेरी सुन ले। चांद बादलों के ओट में होने लगा। हवा में तेज़ी से आ गई। न जाने वो क्या पैगाम थामे आई थी। गहरी होती रात कतरा कतरा उतर रही थी। अर्श कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ गहरी खामोशी और अंधेरे का राज था। गौर करने पर इसे खिड़की के पास खड़ी सवेरा नजर आई। बाहर बादल बरसने को तैयार थे। वो चाबी मेज़ पर रखता भारी कदम उठाता इसके पास आया। इसने गर्दन पर गहरी भारी सांसें महसूस की थी। अर्श ने इसकी कमर के गिर्द बाजुओं का घेरा तंग कर लिया। उसके लरसते लबों पर सवेरा ने जोर से आंखें मींच ली। वो जानती थी वो रो रहा है। इसकी कमर अर्श के सीने से लगी थी। सवेरा ने सर पीछे को इसके सीने पर रखते इसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको सुनना चाहता हूँ। आंखें मूंदे इसके बालों में चेहरा छुपाए हुए था। अंधेरे में डूबा कमरा कुछ और गहरा हो गया। बादल बरसने लगे थे। मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। बालकनी में हवा के संग झूलते फूल मुस्कुराकर खुलकर मुस्कुराए थे। पिछले 4 घंटों से सर झुकाए वो एक ही पोजीशन में बैठा था। रंग था कि पीला पड़ रहा था, जैसे जिस्म का सारा खून निचड़ गया। और नईम साहब ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा तो इसने चौंक कर सर उठाया। आवाज़ आई थी। इसने फ़ौरन ओपीटी के दरवाजे को देखा, वो बंद था। नईम साहब ने फ़ोन इसकी जानिब बढ़ाया। इसने सवालिया नज़रों से इन्हें देखते फ़ोन कान से लगाया। अर्श, मेरी बात सुनो। अर्श तो लाखों में भी आवाज़ पहचान सकता था। जलील इंसान, मैंने तुम्हें रहने की छत दी और तुमने मेरी ही इज्जत पर हाथ डालना चाहा। अच्छा होता तुम भी अपनी माँ के साथ मर जाते। मैंने कुछ नहीं किया। हानिया मुझ पर बहतान लगा रही है। सारा मंजर आंखों के आगे चलने लगा। अर्श, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं बर्बाद हो गया अर्श। हानिया भी बर्बाद हो गई। इस पर एक लड़के ने तेज़ाब फेंक दिया। वो ना जिंदों में है और ना मुर्दों में। तुम सच्चे थे, तुम पर लगाया बहतान हमें ले डूबा। बस एक बार कह दो कि तुमने हमें माफ़ किया। अर्श की आंखों से आंसू बह रहे थे। नईम साहब ने इसके कंधे पर हाथ रखा। अर्श, अल्लाह तो हम सबसे प्यार करता है, वो सब हिसाब रखता है। वो तो यहाँ की बातें भी जान लेता है। अर्श ने बायां हाथ उठाकर सीने पर रखा, जैसे सवेरा के हाथ को पकड़ना चाहा हो। मैंने सबको माफ़ कर दिया है, इसने कहते ही हाथ गिरा दिया। तभी सामने दरवाज़ा खुला और डॉक्टर की पूरी टीम कमरे से बाहर निकलती दिखाई दी। उनके बढ़ते कदमों के साथ साथ उसका दिल भी डूबता जा रहा था। डॉक्टर ने आगे बढ़कर अर्श को कंधों से थामा। उसका पूरा वजूद लरज रहा था। डॉक्टर के लबों से अदा होने वाले अल्फाज या तो इसे ज़िंदगी देंगे या इसे ज़िंदगी छीन लेंगे। 20% उम्मीद से 100% कामयाबी हुई है। और बस वो घुटनों के बल फर्श पर ढह गया। फिर सब ने इसे सफ़ेद मार्बल पर सजदा करते और फूट फूट कर रोते देखा था। परिंदों का एक काफिला पर फैलाता फलक की जानिब बढ़ा और एक मदार में घूमने लगा। सफ़ेद रुई जैसे बादल हवा के संग आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एक शहजादा था, सियाह नैन जो चमक लिया आसमान को देख रहे थे। आहिस्ता से उनका जाविया बदला और एक अक्स इन आँखों में नमूदार हुआ। शहजादे के लिए सियाह आँखों में अपना अक्स देखना दुनिया के सब मनाजिर से बढ़कर दिलकश था। नकाब में नज़र आती आंखें मुस्कुराईं। शहजादा तन्हा था, इसके लिए ज़िंदगी का हर कदम भारी था। वो अपनी ज़ात को अंधेरों में तहलील होता महसूस कर रहा था। फिर आहिस्ता से नर्म हाथों ने मजबूत हाथों को थामा। फिर एक शहजादी ने इसे ख़त थमाया। इस ख़त में एक रोशन चिराग था, वो चिराग जिसे पाकर शहजादा रोशनियों को महसूस करने लगा। इसने तब जाना कि बाज़ दफ़ा अल्फाज भी जीना सिखा देते हैं। हाथों की गिरफ्त मजबूत हुई। कुछ ना करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि रोशनियों को चिराग पकड़ा देना, जैसे कि अल्लाह के अमान में दे देना, जैसे कि दुआओं में शामिल कर लेना।
कदम सुर्ख फर्श पर ठहर गए। बादशाही मस्जिद के गुंबद रोशन हो गए। कबूतर मस्जिद के फर्श पर सुकून से बैठे दाना चुग रहे थे। तभी नन्हे कदम उनकी जानिब बढ़े। नन्हे वजूद को करीब आता देखकर कबूतर पर फैलाते उड़ गए। परी खिलखिलाकर बाहें फैलाती माँ बाप की जानिब पलटी। अर्श ने आगे बढ़कर हरीम को गोद में उठाते इसके फूले गाल चूमे। बाबा, इसने अर्श के चेहरे को अपने नन्हे हाथों से थाम लिया। सवेरा ने मुस्कुराते हुए हरीम की जैकेट और सर की टोपी दुरुस्त की। दाएं हाथ में सवेरा का हाथ थामे और बाएं बाजू में हरीम को उठाए इसने कदम आगे बढ़ा दिए। साथ ही हल्की सी नज़र नारंगी आसमान पर डाल ली थी। फ़ज़ा में फैले परिंदे घरों को लौटने को थे। ये प्यारी सी कहानी यहीं पर तमाम हुई। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।